دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، تم نے کہہ تو دیا مدد مانگنا جائز ہے، اور کیا ثابت کروں؟ ایک پورا دیوبندی عالم میں نے قبولوا دیا، ایک دیوبندی عالم نے قبول کر لیا کہ مدد مانگنا جائز ہے نبی علیہ السلام سے، اور کائی کی دلیل دو؟ ابھی تو تم نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے مدد مانگنا مزار شریف پہ جا کے جائز ہے تھوڑی دیر پہلے۔ تم نے دلیل کہاں دی کہ قبر پہ مانگنا؟ تم نے کہا نا کہ قبر پہ جا کے مانگنا جائز ہے، اس کی دلیل تم نے کہاں دی؟ ارے لیکن تم نے تو مان لیا نا کہ ہاں جائز ہے۔ میں نے کب مان لیا جائز ہے بھائی؟ اب دیکھو پھر بھاگے اپنے موقف سے۔ استغفر اللہ، یہ دیوبندی قوم جو ہوتی ہے اس سے زیادہ بدترین قوم اس دنیا میں آپ کو مل سکتی ہے؟ بتائیے، ہنسیں گے لوگ تم پہ۔ تم نے اور دلیلیں بھی دے رہے تھے، تم کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کو روضہ مبارک پہ جا کے مانگنا جائز ہے، یہ کہہ رہے تھے تم۔ کیا یہ ہماری جو بات چل رہی تھی، یہ نبی کے مزار کے بارے میں چل رہی تھی کہ عام مزاروں کے بارے میں؟ اچھا، نبی علیہ السلام کے مزار پہ مدد مانگنا جائز ہے نا؟ یہی تو باقی مزار برابر ہے۔ نبی علیہ السلام کے مزار مبارک پہ جا کے مانگنا جائز ہے نا؟ وہ تو ٹھیک ہے، ہو گیا۔ تو وہی تو میں تم سے کہہ رہا ہوں، چلو اچھا اس کو تم مان گئے، اس کو تم مان گئے کہ ان کے مزار پہ جا کے مانگنا جائز ہے، اور اولیاء کرام کے مزار پہ مانگنا کیا ہے اس کا بھی بتا دو، تو میں دلیل دے دیتا ہوں تمہیں۔ پھر اولیاء اللہ کے کرام مزار پہ جا کے مانگنا جائز ہے تو دلیل کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ ارے تو تم مانتے کیا ہو تبھی تو دلیل دوں۔ تم ناجائز کہہ دو پھر میں دلیل دے دوں گا، ترنت دلیل دوں گا، ایک سیکنڈ میں۔ منافق یہی پہچان ہوتی ہے، میں ٹھیک ہے؟ منٹ سے سورہ پہلے منافق، سورہ منافق، ارے منافق کرتے رہو، جاہل کہتے رہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ میں منٹ سے پہلے دلیل دوں گا تمہیں کہ مزار پہ جا کے مانگنا جائز ہے کہ نہیں۔ پہلے تم خالی یہ کہہ دو کہ اولیاء اللہ کے مزار پہ مانگنا ناجائز ہے، تم کہہ کیوں نہیں رہے؟ اولیاء اللہ کے مزار پہ جا کے مانگنا ناجائز ہے، دلیل لو، چلو تم جائز کی۔ تم نے ناجائز کہہ دیا نا؟ ہاں، ناجائز میں شرک ہے، کیا ہے؟ اب لمبی چوڑی گفتگو نہ کرو، دلیل دو۔ نہیں، ارے یہ بھی تو پتہ چلے کہ مزار پہ جا کے مانگنے کو تم شرک کہتے ہو کیا؟ ارے ہم سنیوں سے ملو، ہم سنیوں سے ملو، ہم سینہ ٹھوک کے دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ جائز ہے، کوئی ہجک کچھ بھی نہیں۔ تم اپنا دعویٰ تک پیش نہیں کر پا رہے ہو، اتنی دیر میں تم نے ناجائز کہا ہے۔ چلو اب یہ بتاؤ شرک ہے؟ ناجائز میں شرک ہے نا؟ سنو ناجائز میں شرک ہے نا؟ سنو یار، جیسے ہندوؤں کی طرح ایسے تم کل کو جا کے کسی میں واللہ بتا رہا ہوں کہ میں دلیل دوں گا، میں واللہ بتا رہا ہوں میں دلیل دوں گا کہ تم ناجائز میں شرک مانتے ہو، کیا مانتے ہو؟ بولو گے کہ اس سے انکار پہ دلیل دو، نہیں دوں گا اب میں تم سے کوئی دلیل نہیں مانگوں گا، اب دلیل میری طرف سے آئے گی۔ تم خالی یہ بتا دو ناجائز میں شرک مانتے ہو نا، دلیل میرے ذمہ، دلیل میں تم سے نہیں مانگوں گا، تم سے نہیں مانگوں گا۔ گھنٹے بات کیے، آج بھی 1 گھنٹے بات کیے، ایک بھی دلیل نہیں دی، ایک قرآن کی آیت نہیں پڑھی تم نے یار۔ ارے تم سے ثابت ہو تو گیا نبی علیہ السلام سے مدد مانگنا جائز ہے، تو اب کاہے کی دلیل دوں میں تمہیں؟ قرآن پڑھنے کے لیے تم نے کہہ تو دیا، تم تو میرے موقف میں ہمسایہ نکلے، تم تو میرے موقف میں ہمسایہ نکلے۔ ارے جب تم دیکھو نا، تم سے قبولوا لیا ہم نے کہ نبی علیہ السلام سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اس 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ کا رزلٹ دیکھو کہ ایک دیوبندی عالم نے قبول کر لیا کہ نبی علیہ السلام سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اس کو کہتے ہیں رزلٹ، اس کو کہتے ہیں حق جماعت کا باطل کے منہ سے قبولوا لینا۔ اس کو رزلٹ نہیں بولتے ہیں، جا کے دوبارہ سنو گے ایسی اچھا چلو ٹھیک ہے، میں دلیل دیتا ہوں، سنو بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی۔ ابھی سنو، دیر میں کچھ نہیں ہوئی، ابھی تم دیکھو کس کا انکار کرو گے۔ پہلے قرآن کا انکار کیا، حدیث کا انکار کیا، تفسیروں کا انکار بتا کیا۔ دو میں نے کس کا انکار کیا؟ قرآن پہ جھوٹ بول کے بھاگے تم، قرآن پہ جھوٹ بول کے تم بھاگے، حدیث پہ تم نے جھوٹ بولا، سب جگہ تم نے اپنی عقلیں استعمال کی، کہیں پر بھی تم نے نہیں دکھایا امور غیر عادیہ میں مدد مانگنا شرک ہے، کہیں بھی نہیں دکھایا۔ کون سی حدیث کا جھوٹ بولا میں نے؟ حدیث پڑھ کے دکھاؤ، کون سی حدیث کا میں نے جھوٹ بولا؟ تم نے کہیں نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ غیب میں مدد مانگنا شرک ہے، یہ نہیں کہا تم نے؟
नहीं कहा तुम तुमने? लोग कसम से ना, अबे भाई ये कुरान से साबित है, नबी की बात, तुम कहाँ जा रहे हो? अच्छा, अरे तो नबी अलैहिस्सलाम का भी तो फरमान है, उनका फरमान हदीस होता है। कैसे जाहिल झपट अबे इंसानों जब की तरह कुरान बात ही कर रहे से हो? कैसे, साबित है मतलब ना कहाँ भाई, पढ़े हो? हेलो, कहाँ पढ़े हो? कुरान कुरान ही से साबित है। हलो हलो नहीं, तुमसे कोई एक आयत तो तुमको याद है नहीं, क्या? कुरान तुमसे पढ़ा नहीं जाता है, अच्छा, जाके यानी मज़ारों कि पे मांग रहे हो। और नबी दलील की अलैहिस्सलाम ने जरूरत नहीं नबी है। अलैहिस्सलाम से तुम्हारा मौक़िफ़ नहीं साबित नहीं नहीं है, सुनो, इसका मतलब फिर? तुम जो है कल कुरान अपने की किसी कौन सी पीर की आयत से लिंग की साबित पूजा है? करने लग अच्छा, जाओ, और कोई दलील मांगे ना। कुरान की कौन सी आयत से सुनो साबित है? सुनो, कल जाके तुम किसी पीर के लिंग की पूजा करने लगना, कोई आके ये देखो, मुसलमान दलील मांगेगा ना, अरे हम तो बोल नहीं देना भाई करते बड़े बड़े देवबंदियों घरों की में दलील तरह, नहीं थानवी की देते। चक्कर में तुमने नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगना जायज कह दिया, वैसे तुम शिर्क कर रहे थे। हम थानवी की, जैसे तुम पूजा कर रहे अरे हो ना, भाई जो वो कह दे हम लोग बस जो वही है मानेंगे। हम समझ लोग रहे हो, जो हम है ऐसा हम नहीं लोग जो करते। है तुम हमें लोग की तरह दलील, दो हमें बात नहीं हमें करते। मनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए दलील लगती है। सुनो, चलो दलील पेश करो। तुम लोग के लिए दलील लगती है, एक भी दलील दी नहीं तुमने, और तुम तुम, लोग के लिए अरे दलील हम लगती कब है। से दलील मांग रहे हैं, दलील ही तो चाहिए हमें। शिर्क है इसकी दलील, हमें अभी दलील लगती है अभी कन्विंस तुमने करने के कहा लिए। कि अभी तुमने कहा था कि औलिया अल्लाह के मज़ारों पे जाके मांगना जायज है, मैंने दलील मांगा तो तुमने कहा कि पहले तुम अपना वो दावा पे मतलब अपनी बात वाज़ेह करो, मैंने कह दिया कि ना जायज है, अब तुम दलील क्यों नहीं दे रहे हो, हाँ क्यों भाग रहे हो बिल्कुल, यहाँ वहाँ तुम दाएं बाएं? दूसरी तरफ भाग गए ना, अब आ जाओ वहीं पर, मैं दलील दे मैं देता हूँ। नहीं सुनो भाग रहा, पहले, तुम भाग रहे हो, मैं मैं नहीं दलील भाग दे रहा, देता। तुम भागे अरे हो। तुम दलील ले ही नहीं रहे हो, मैं दलील देने के लिए लो तैयार हूँ, तुम ले ही नहीं चलो रहे। बिस्मिल्लाह करो। हाँ, मैं दलील देता हूँ। पहले ये बताओ, तुम नाजायज में शिर्क मानते हो या नहीं? हाँ या ना, बस इतना बता दो, फिर मैं दलील देता हूँ। ना जायज है, पहले तुम बिस्मिल्लाह करो, उसके बाद चलो। सुन तो लो, मैं, मेरी तरफ से दोबारा कोई सवाल नहीं आएगा, डायरेक्ट दलील आएगी। तुम खाली ये कह दो मजार पे कयामत मदद तक नहीं मांगना आएगी, तुम लोग नाजायज के है, यहाँ सुनना, नाजायज में तुम शिर्क लोग है। के यहाँ वफादी के अलावा और अपनी जहनी खुराफात चलो के अच्छा अलावा, अपनी ये कह जहनी दो, आवाज़ी के चलो अलावा अच्छा और ये कुछ कह नहीं दो, है। अच्छा ये दावा कह दो करते कि रहो, मैं दलील मत नाजायज दो। मानता हूँ, सिंपल। मैं शिर्क नहीं मानता, ये भी यही कह दो, खाली कुछ तो कहो। नहीं, दवाओं का तुम लोग सिर्फ दावे करते रहो, दलील मत दो, क्योंकि अरे दलील मैं मांगेगा तो वो दलील काफिर दूंगा, हो जाएगा। तुम इतनी देर तुम हुज्जत करोगे, इतनी देर में अपना दावा बता दोगे। कुछ है थोड़ी जो तुम माने बैठे हो दिल में, चलो तुम नापाक दलील नहीं बात वो दोगे, दलील जाहिर कर तुम नहीं दो। दोगे, नहीं तुम दलील दोगे ही नहीं। जैसे चलो मुझे इतनी देर मालूम है तुम तुम दलील हुज्जत कयामत तक करोगे, दे भी नहीं इतनी देर पाओगे। में तुम कह दोगे कि शिर्क मानते हो या शिर्क नहीं मानते। हाँ या ना में कह दो। तुमने पहले जवाब दलील देने की ये शर्त लगाई थी कि तुम नाजायज बोलो, अब अरे मैंने लेकिन मैं बोल दिया, अब मैं मुकम्मल ये दावा बोलूंगा कि मानूंगा ना, मैं मैं क्यों मुकम्मल। तुम्हारी बात मान करके भरोसा करूं भाई तुम्हारे ऊपर? तुम एक बार कुछ बोलते हो, दूसरी बार कुछ अरे नहीं, बोलते मैं हो, कभी यहाँ मुकम्मल भागते हो, चाह कभी रहा हूँ वहां ना, भागते हो। मुकम्मल वजाहत आ जाए ना, मुकम्मल। तुम यही कह दो सुनो ना कि सुनो तुम सुनो सिर्फ नाजायज मानते हो, शिर्क नहीं मानते। दलील आएगी, फिर मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, जाओ। सुनो, पक्का, ठीक है। मैं दलील दूंगा। तुम्हारे अब आलिम उधर अहमद यार जाने से खान ने बेहतर लिखा है कि हुआ तुम ये बता दो शिर्क है, है। ताकि मैं दलील दूं तो तुम कम से कम उन पे मैं तुम्हारा कोई जिनकी, जहां से मैं तुम लोग का दलील दे जो रहा है हूँ, कोई फायदा उन पे नहीं है, हुक्म भी तो क्योंकि लगेगा तुम ना लोग तुम्हारा। मेरे साथ कपड़े करते रहोगे, ये ठीक डर है। रहे हैं, ये तुम्हारा डर दावा गए देने हैं, कोई ये फायदा नहीं, जानते तुम हैं लोग कि दावा अगर करोगे इनने दलील शिर्क क्यों नहीं कह दोगे? दिया और मैंने दलील दे दी, तो शिर्क का हुक्म उधर चला जाएगा जहां से दलील दूंगा मैं। इसलिए ये बता नहीं रहे। कयामत तक जो है तुम दलील नहीं दोगे, अरे ठीक मैं है। अभी दलील दे देता हूँ, तुम ये बता दो कि शिर्क है क्यों कि नहीं दे नहीं। रहे हो? ये नाजायज क्यों नहीं में दे तुम रहे हो शिर्क बताओ ना, मानते हो या सिर्फ नाजायज ही क्यों मानते नहीं हो? दे रहे हो? क्यों नहीं दे रहे हो? इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि तुम पूरा वाजे नहीं कर रहे कि तुम शिर्क भी मानते हो या सिंपल नाजायज। तुम ये कह दो कि तुम सिंपल नाजायज मानते हो, बस। तो तुमने कौन सा अपना मसला कल से आज तक वाजे किया? तुमने कल से तुमसे यही पूछ रहा अरे हूँ ना तो कि गैरुल्लाह तुम्हारे यहाँ कल मांगने से के तो काम हम लाते तुमसे शिर्क की दलील मांग रहे हैं, तुम दे ही नहीं पा रहे अभी तक। अब तुम अपना दावा नहीं हैं। बता पा शिर्क की रहे। दलील, शिर्क और की चलो दलील तो वो तुम्हारे समझ वो में तो नहीं नबी आएगा, तो ही अलैहिस्सलाम क्या से करें? कुरान मांगना, में तो समझ में नहीं नबी आ रहा, अलैहिस्सलाम से मांगना तो ठीक है। तुमसे ही साबित हो गया। देखो, तुम भी कह रहे हो वहां जाके मांगना जायज है। हाँ तो हाँ, तो अब दलील किस बात की दूं? मैं भाई नबी कब्र में जिंदा है, तुम लोग नबी की अरे जिंदगी को भी नहीं मानते क्या? अरे तो हम और तुम हमसाया हो गए ना कि नबी अलैहिस्सलाम से अबे मदद मांगना जायज है, तो दलील किस बात की दूं? जिंदा आदमी से जो है वो जिंदा आदमी से उमूर आदिया में मांगने से किसने इनकार किया है? हमारा तो क्या बहुत साले बढ़िया, सुन्नत पे बहुत जो बढ़िया। है, यानी कि हम तुम बराबर ठीक ठाक, हमारा टॉपिक बिल्कुल सेम है कि नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगना जायज है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? तो ये बताओ नबी को कब्र पे वहां जाके मांगना ना, तुम यहाँ से बैठे बैठे मांगते रहते हो कि ए नबी मुझे जो है औलाद दे दे, अच्छा, यही से औलाद तो भी मांगते रहते हो और बैठ वहां के। जाके औलाद मांग ले तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वहां भी दिक्कत है। अब वहां से भी हाँ दिक्कत है। वास्ता बना के मांगने से कोई दिक्कत नहीं है, वहां जाके दुआ करो कि अल्लाह के नबी जो है अल्लाह ताला से हमारी सिफारिश करो, तो वहां जाके ये हाँ, सुन लेना, अच्छा, ये बात कब्र कह पे के जाके औलाद बहुत मांगना, करो। ये वास्ता बना के औलाद मांगना जायज है ना?
वहां जाके हाँ, वहां जाके वास्ता बना के औलाद मांगना जायज है ना नबी अलैहिस्सलाम से? वहां जाके तुम सिफारिश करो, अल्लाह के नबी अल्लाह से सिफारिश करो, तो वहां जिंदा तुम यहीं बैठे अच्छा, बैठे वहां अल्लाह जाके के नबी को अल्लाह के मुखातब नबी करोगे। का वास्ता बना के औलाद मांगना जायज है ना? हाँ, हाँ, तो यानी कि ए अल्लाह के नबी, आप हम पे करम फरमाए, दुआ फरमाए कि अल्लाह हमें औलाद अता फरमा दे, ये तो जायज है ना? क्योंकि तुम लोग की ये तो रग के अंदर जो शिर्क होता हुआ, ये तुम लोग देखो को मांगने औलाद भी नहीं मांगने आता, के भी कायल हो गए ये तो। तुम लोग को मांगने ही नहीं आता, वसीला इसको बोलते हैं, सिफारिश इसको बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं इसको? मतलब तुम वहां जाके भी अल्लाह के नबी से ही मांगोगे कि अल्लाह के नबी से हम पर करम करके हमको औलाद दे दो, है? यार ये तुम नबी वहां भी अलैहिस्सलाम जाके जब हम हमारे लिए दुआ करेंगे तो ये नबी अलैहिस्सलाम का हम पे करम ही तो है, तो हम यही तो कह रहे अरे हैं नबी भाई अलैहिस्सलाम हम पे करम फरमाइए। वहां जाके भाई आवाज कट गई भैया, आवाज कट गई, बताओ। नबी के पास इख्तियार थोड़ी है कि वो तुझे औलाद देंगे। अरे भैया, अब तू वहां जाके भी मैंने क्या कहा वहां जाके अगर कोई ये कहे कि ऐ अल्लाह के नबी हम पे करम फरमाए, अल्लाह से दुआ करें कि हमारी औलाद हो जाए, तो ये तो जायज है ना? हाँ हाँ, तो ये किससे तुमने अर्ज किया? नबी अलैहिस्सलाम से, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम हाँ दुआ करेंगे तो औलाद हो जाएगी, ठीक है? कहाँ अर्ज किया है? नबी अलैहिस्सलाम से वहां जाके नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पे क्यों हो गया ना? तो देखें भाइयों, नहीं, ये क्यों? देवबंदी आलिम ने ये कबूल कर लिया कि नबी अलैहिस्सलाम से औलाद मांगना, यानी कि औलाद की अर्ज करना नबी अलैहिस्सलाम से कि आप दुआ करें कि अल्लाह हमें औलाद अता फरमाए, तो ये जायज है, हो गया? हाँ, नबी के उससे नबी से सिफारिश अरे करवाना, नबी अलैहिस्सलाम कब्र से को ही अर्ज कर रहे हैं हम तो कि आप दुआ करें। क्या? पूरी बात सुनो, नहीं तो तुम लोग आधी आधी ऐसा बात ले जाके अपनी अकीदा कौम को जिसका गुमराह हो, करते हो। सुनो अपने मैं धर्म क्या को कह रहा हूँ, छोड़ो। यहाँ आज मैं एक दावा कर रहा हूँ, जो ये कहे कि नबी अलैहिस्सलाम आज खुद नहीं से करो। औलाद देते हैं, कोई सुन्नी भी हाँ, अगर ये कह दे नबी अलैहिस्सलाम खुद से औलाद देते हैं, वो मुशरिक है। मैं भी ये कह रहा हूँ कहे कि नबी अलैहिस्सलाम खुद से औलाद देते हैं, वो भी मुशरिक है। हमारा भी यही अकीदा है कि वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से ही दुआ करते हैं, अल्लाह की अता से ही मदद करते हैं, तो हमारा भी तो हो यही गया भाई, अकीदा हल हो है। गया तो मुद्दा, देवबंदी और हम हल दोनों हो सेम गया सेम हो मुद्दा, गए। हल हो गया मुद्दा भाई, हल हो गया, हो गया हल। क्या? जब नहीं मांग सकते नबी से, तो फिर मांगते क्यों हो? क्या? क्यों मांगते हो गैरुल्लाह से? अभी तो तुम कह रहे हैं कि वहां जाके मांगना जायज है। अभी तुमने कहा था कि किसी बरेलवी मुशरिक का, किसी बरेलवी का ये अकीदा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें औलाद दे दो। तो जब आप किसी का नहीं, ये ये नहीं अकीदा नहीं, कहा, तो तुम ये लोग नहीं मानते क्यों कहा, हो? ये नहीं कहा मैंने ये कहा, सुनो, मैंने ये कहा कि हाँ, किसी सुन्नी का ये अकीदा नहीं है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो उनसे जब हम औलाद मांगे तो वो खुद से औलाद देते हैं, अल्लाह की अता नहीं होती उसमें। ये अकीदा नहीं है, जिसका ये अकीदा हो वो मुशरिक है। जैसा कि हाँ, तुम्हारा तो ये अकीदा है कि वो अल्लाह से ही दुआ करेंगे, मदद करेंगे, ऐसे ही हमारा भी अकीदा है कि वो भी अल्लाह ही की अता से हमारी मदद करेंगे। तो इसमें शिर्क कहाँ रहा? दोनों का हमारा तुम्हारा तो फिर अकीदा तो सेम मसला सेम ही हो हल हो गया। गया भाई, हो गया ना? फिर तो मसला ही हल हो गया, तो हमारा भी अकीदा है हाँ, भाई। तो फिर तुम लड़ काहे रहे हो इतनी देर से? यार, तो तुम रहे हो यार, किस कल बात? फोन किसने लगाया था? क्या फोन किसने लगाया था? सुनो, पहले तुम्हारे देवबंदी फोन जो किसने होते हैं वो ये कहते हैं कि इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम से मदद। सुनो, तुमने मान तो लिया है, लेकिन तुम्हारी किताबों में ये लिखा नहीं है। क्या? ठीक है, अपनी किताबें जाके पढ़ो, और तुम्हारे पास व्हाट्सएप पे मैं हवाला दूंगा, उसको देखना अरे आला इंशाअल्लाह। हजरत ने तुमने मुंह से तो अपनी इकरार कर लिया। दौलतुल सुनो, मकिया में, सुनो पूरी बात मैं सुनो, जवाब दूं ना, एक अपनी मिनट अपनी बात सुनो। किताबों का जवाब तो मैं एक दूंगा। मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, फिर बोलना, तुमको मौका दूंगा मैं, ठीक है? तुमने अपनी जबान से इकरार तो कर लिया, हाँ। मैं तुमको अभी हवाले दूंगा, अपनी किताबों को पढ़ना तुम, लेकिन तुम्हारी किताबों में ये अकीदा लिखा नहीं है। क्या? तुम लोग तो अब्दुल कादिर जिलानी को माकान और मा यकून का आलिम मानते हो, तो तुम लोग कहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हो गया तुम ना? लोग का तो वही शियों वाला अकीदा है, जो हज़रत अली के बारे में मानते हैं कि तमाम अंबिया से अफजल हैं, और उलूहियत के वो अल्लाह ताला ने अस्तगफिरुल्लाह, उनको दे के अपना बना दिया है। अब ये सारे जो तुमने झूठ दिए हैं हमारे ऊपर, जो झूठ बोल रखे हैं ना, तुम्हारी किताब से, जो झूठ तुम्हारी बोल किताब रखे से हैं ना हवाला तुमने, दूंगा, व्हाट्सएप पे भेजूंगा, जो तुमने झूठ तुम्हारी बोल, किताब से। अरे सुन सुनो लो, सुनो सुनो, अब तुम उधर मत भागो, अब यहाँ रहो।
तुम हमारा किसी भी किताब से ये अकीदा दिखाओ कि हमारा ये अकीदा हो कि नबी अलैहिस्सलाम खुद से मदद करते हैं, ये अकीदा तुम्हें दिखाना पड़ेगा। अरे चिल्लम चिल्ली मत डालो यार। अरे फैजान भाई एक एक करके बात कर लो फैजान भाई। व्हाट्सएप पे भेजूंगा मैं, और उस हवालों को जो है अगर क्लिप नहीं लगाना तो उस हवालों को साथ में लगाना। अरे तुमने हो जबान से चुप तो तो इकरार जाओ भाई, खामोश तो रहो। मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें ये दिखाना है। अरे सुन लो, मसला हल हो गया। अरे सुन, हम भी यही अकीदा रखते हैं, लेकिन तुम्हारा ये अकीदा तुम्हारी तुम्हारा किताबों में नहीं अकीदा लिखा मैं है। बता दूं। फैजान भाई हो गया। फैजान भाई एक एक करके बात कर लो फैजान भाई, मैं ये आवाज कह नहीं आ रहा रही है। हूँ हमारा अकीदा अगर तुमने ये दिखा दिया किसी भी किताब से कि नबी अलैहिस्सलाम खुद से हमारी मदद करते हैं, तो जाओ मैं शिकस्त लिख करके दे दूंगा, ठीक है। हमारी एक किताब से भी तुम नहीं दिखा सकते जिसमें ये लिखा हो कि नबी अलैहिस्सलाम खुद से मदद करते हैं। उसमें यही लिखा होता है कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की अता से हमारी मदद करते हैं। जा अल हक व जहकल बातिल में भी, आला रहमतुल्लाह अलैह ने दौलतुल मक्किया में भी लिखा। अब सुनो मेरी बात, तुमने इकरार किया, अब सुन लो पहले एक मिनट, मेरी सुन लो, मेरी सुन लो, मेरी सुन तो लो। तुमने ये इकरार किया कि नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पे ये अकीदा रख के अगर मांगा जाए कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह से अता करके, अल्लाह से दुआ करके हमारी मदद करें, या फिर अल्लाह से दुआ करते हैं वो हमारी मदद करते हैं, तो इस तरीके से ये जायज है, ठीक है। अब वो सुनो तो इस पे दलील ले लो एक, इस पे तकवियतुल ईमान के पेज नंबर 20 पे सुन लो, मैं दलील दे रहा हूँ। तकवियतुल ईमान के पेज नंबर 20 पे इस्माइल दहलवी ने लिखा कि जो ये अकीदा रख के मज़ार पे भी जाए कि हमारी अंबिया और औलिया मदद कर सकते हैं, वो अबू जहल जैसा मुशरिक है। अस्तगफिरुल्लाह। तो बिल्कुल है, तुम तो अबू जहल जैसे मुशरिक हो गए। अबू जहल से बड़ा मुशरिक होगा। हाँ तो तुम तो कह रहे हो मज़ार पे जाके नबी अलैहिस्सलाम के मांगना जायज है मदद। तुम्हारी समझ में कभी नहीं आएगा। कौन समझा सा दो। मांगना मुराद ले रहे हैं? कौन सा बताओ? वो मांगना जो हम अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह में औलाद अता कर, जिसके नहीं बारे नहीं में नहीं अल्लाह ने नहीं, वहाँ कुरान में नहीं आयत लिखा है ऐसा, वहाँ नहीं लिखा है, वहाँ ये लिखा है, वहाँ ऐसा नहीं लिखा, झूठ मत बोलो। वहाँ लिखा है कि मदद के इरादे से, क्या मदद के इरादे से अगर तुम मज़ार पे जाके कि वो तुम्हारी दुख मुसीबत हल कर देंगे, ये इरादे से तुम जाओ तो अबू जहल जैसे मुशरिक हो तुम, ये लिखा है वहाँ पर। तो ये नहीं लिखा है कि जो चीज अल्लाह से मांगते हैं वो मांगना वहां जाके तो मुशरिक होगा, ये नहीं लिखा है। तुम तो मुशरिक होगा अपने घर से ही। लिखा है ये बताओ। हाँ ये पढ़ के बता दूं, पढ़ के? हाँ पढ़ के बता दो। चलो चलो मैं कम से कम ये तो पता चले। चले एक मिनट पढ़ के बता देता हूँ और ज्यादा मजा आएगा। चलो अल्लाह का करम है तो उर्दू पढ़ने के लिए तैयार हो गए। अरे ऐसा है ना, हम कब की पढ़ देते हैं लेकिन तुम शिर्क साबित नहीं कर पाए ना, इस वजह से। अरे तुम पढ़ लो यार, चलो कम से कम अभी इससे ही भाग जाओगे तो मसला हो जाएगा, नहीं तो पढ़ दो, कुछ नहीं बोलूंगा मैं। मैं तुम्हारी तरह नहीं भागता और अल्हम्दुलिल्लाह भागेंगे भी नहीं। रुक जाओ, चलो पढ़ो, बिस्मिल्लाह करो यार। अब ये पढ़ देते। अरे रुको, दलील तो निकालने दो भाई। तुम तो खाली जुबानी कह रहे थे, हम तो दलील तुम्हें पढ़वाएंगे इंशाल्लाह। ये देखो भेज दूं तुम्हारे पास भी भेज दूं। तो मेरे पास किताब है, उसकी टेंशन मत लो तुम। चलो तो ठीक है, पेज नंबर 20 निकालो, वहां लिखा है, देखो मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में काफिर भी अपने बुतों को अल्लाह के बराबर नहीं जानते थे, अल्लाह के बराबर नहीं जानते थे, बल्कि उसकी मखलूक और उसी का बंदा समझते थे, और उनको इसके मुकाबिल की ताकत साबित नहीं करते थे, मगर यही पुकारना, क्या यही पुकारना, मन्नतें मानना और नजर व न्याज करना, और उनको अपना वकील और सिफारिश भी लिख दिया उन्होंने, सिफारिशी समझना ही उनका कुफ्र व शिरक था। क्या लिखा है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में काफिर भी अपने बुतों को अल्लाह के बराबर नहीं जानते थे, बल्कि उसकी मखलूक और उसी का बंदा समझते थे, और उनको के मुकाबिल की ताकत साबित नहीं करते थे, मगर यही पुकारना, मन्नतें मानना और नजर व न्याज करना, और उनको अपना वकील और सिफारिशी समझना। जैसे तुमने कहा ना कि नबी अलैहिस्सलाम को हम सिफारिशी बनाते हैं मज़ार मुबारक पे जाके, तो
اسماعیل دہلوی نے کیا لکھا ہے, یہی سفارشی سمجھنا ہی ان کا کفر و شرک تھا. جو کوئی یہ معاملہ کرے اگرچہ اس کو اللہ کا بندہ و مخلوق ہی سمجھے تو وہ اور ابو جہل شرک میں برابر ہے. دوستو کیا لکھا؟ دوستوں نہ کرو. یہ بتاؤ تم نے اس سے نتیجہ کیا نکالا؟ ارے نتیجہ تھوڑی صاف صاف لکھا, آپ کوئی نتیجہ نکالوں وہاں پر؟ صاف صاف لکھا ہے کہ سن لو, صاف لکھا ہے کہ سفارشی بنانا, نیاز بھی کروانا, یہ سب ابو جہل جیسے مشرک ہیں. استغفر اللہ, صاف تو لکھا ہے. ایسا لکھنے والا تمہارے نزدیک کیا ہے؟ اب یہ بتاؤ تم مشرک ہوئے کہ نہیں ہوئے ابو جہل اس کے اسماعیل دہلوی کے مطابق؟ تم نے تو کہا تھا کہ وہاں جا کے نبی علیہ السلام سے مدد مانگنا, وہاں جا کے تو یہ جائز ہے, ان کو سفارشی بنانا جائز ہے, ان سے دعا کروانا جائز ہے, تم کہہ رہے تھے. اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ یہی مشرکوں کا شرک تھا. سفارش وغیرہ اپنے گھر سے مشرک ثابت ہو گئے, اپنے گھر سے. سنی ہے یہ, سنی ہے بھیا, یہ سنی ہے, یہ سنی ہے, اہل سنت والجماعت ہے. یہ دیوبندی ایسے ہی ذلیل ہوتے رہتے ہیں سنیوں کے سامنے, اپنے گھر سے مشرک ثابت ہو گئے. تم ایسے شخص کے بارے میں تمہارا کیا حکم ہے؟ اب یہ نہیں, پہلے یہ بتاؤ اسماعیل دہلوی کے مطابق تم مشرک ہوئے کہ نہیں ہوئے, ہاں یا نہ؟ مطلب جو انہوں نے عبارت لکھی ہے تو اس لکھنے کی وجہ سے وہ کیا ہوئے؟ مشرک ہوئے؟ پہلے یہ بتاؤ تم مشرک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ الٹا مجھ سے سوال کرنے لگے. اسماعیل دہلوی کی عبارت میں نے دکھا دی, تم مشرک ہوئے کہ نہیں ہوئے یہ بتاؤ. تم تو سفارش کو جائز کہہ رہے ہو. قبر پہ جا کے جانے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی کی قبر پہ جا کے, کیونکہ وہ زندہ ہے. ہمارا حیات النبی کا کیا ہے؟ پہلے تم نبی کی حیات تو مان لو یار. ہاں تو یہ مشرکین بتوں کے سامنے ہی تو جایا کرتے تھے. تو بت زندہ تھے کیا؟ قبر انور میں موجود ہے, نبی علیہ السلام سے مزار پہ جا کے مانگتے ہو نا. ابے نبی زندہ ہے اپنی قبر میں بھائی. اچھا, یعنی کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ جی اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہی سمجھ کے سفارش کرے تو یہ شرک ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ابے اللہ کا بندہ مطلب جو تم جا کے اجمیر میں جا کے مانگتے ہو نا, اللہ کا بندہ سمجھ کے ہی تو مانگتے ہو. اور نبی لیکن علیہ وہ السلام شرک ہے کو کیا سمجھ کے مانگتے ہو تم؟ اور نبی علیہ السلام کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھتے؟ اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگتے, لیکن وہ اپنی قبر میں زندہ ہے. ہاں تو لیکن یہ تو سفارش, ان کو سفارشی بنانے کو شرک کہہ رہے ہیں. ابے زندہ آدمی کو سفارشی بنا سکتے ہیں بھائی, جیسے تم جازب بھائی سے بول سکتے ہو کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا. اچھا یہ بتاؤ, مردہ آدمی کو سفارشی بنا سکتے ہو تم؟ اسی پہ ساری کھوپڑا مردہ غائب ہے بھائی. آدمی کو سفارشی نہیں بنایا جا سکتا, زندہ کو ہی بنایا جا سکتا ہے. اور اسماعیل دہلوی نے سفارشی بنانے والے کو ہی مشرک کہا, یہ دیکھ لو. ابے ہمارے نبی خود کہہ رہے ہیں انا شفیع, وہ شفیع ہیں بھائی, وہ زندہ ہے قبر میں. قبر میں وہ زندہ ہے, زندہ ماشاء اللہ, کروائی جا سکتی ہے. یعنی کہ اسماعیل دہلوی نے غلط لکھا ہے پھر. اب بھائی تمہارا اور اسماعیل دہلوی کا مناظرہ میں کیسے کرواؤں؟ اسماعیل دہلوی تو اپنی قبر میں مٹی میں مل گیا. اسماعیل دہلوی صاحب جو ہے نا, اسماعیل دہلوی صاحب نے لکھا ہے, وہ اجمیر کے بارے میں لکھا ہے, وہ لکھا ہے کلیت کے بارے میں. استغفر اللہ, جھوٹ بول دیا تم نے. اسماعیل دہلوی پہ بھی جھوٹ بول دیا. چلو عبارت میں کہاں لکھا اجمیر شریف کا نام دکھاؤ. چلو اجمیر شریف کا نام دکھاؤ. اس میں یہ بتاؤ, یہ کہاں لکھا ہوا کہ نبی کی قبر پہ جا کے نبی کو بندہ سمجھ کے مانگو گے تب بھی ابو جہل بنو گے؟ کہاں لکھا ہے؟ سفارشی کس کو بنایا جاتا ہے؟ جو سفارشی زندہ آدمی کو بنایا جاتا ہے. ہمارے نبی تو سفارشی ہے ہی. ہاں تو انہیں سفارش بنانے کو ہی شرک لکھا ہے. تو زندہ ہمارے نبی زندہ نہیں ہے؟ ارے بھائی زندہ ہے نا, تم بھی مانتے ہو, میں بھی. تو اسماعیل دہلوی نے نبی علیہ السلام کو سفارشی بنانے ہی کو تو مشرک لکھا ہے نا, تو وہ بھی تو سفارشی ہی کی بات کر رہے ہیں نا, جبکہ سفارش کروائی ہی زندہ آدمی سے جا سکتی ہے. تو نبی علیہ السلام تو ہمارے زندہ ہیں اور انسانیت میں سب سے بڑھ کے انسان ہیں. تو اب یہ بتاؤ, انہیں سفارش بنانے ہی کو شرک لکھا ابو جہل جیسا, تم تو مشرک ہو گئے. ابے بھائی یہ اجمیری خواجہ اجمیری کو سفارش بناؤ گے تو شرک ہے یہ, کیونکہ وہ زندہ نہیں ہے اپنی قبر میں. پہلی بات نہیں آیا, قیامت تک نہیں آیا. پہلی بات تو یہ ہو گئی, نہ بھاگو نہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ دوگلا پن نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو سفارشی بنانا جائز ہے, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو سفارشی بنانا مشرک ہے. پہلی بات یہ دوگلا پن ہے, اگر ایسا عبارت میں لکھا ہو تو یہ دوگلا پن ہے. اور دوسری بات, اس عبارت میں اجمیر شریف کا نام کہاں لکھا وہ بتاؤ. تو اس عبارت میں یہ کہاں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی وہاں جا کے بھی سفارش کرے تو ابو جہل کہاں لکھا ہے؟ ارے سفارشی جا کے ہی تو, سفارش کس کو جا کے ہی تو بنایا جاتا ہے.
तो सिफारिश ही सिफारिश लिखा क्यों हुआ है। जब सिफारिश उनने लिख सिफारिश दिया, कहाँ पे कर सकते हैं? जब सिफारिश उनने लिख दिया तो जाना खुद ही साबित हो गया, क्योंकि सिफारिश कराई ही जाके जाती है। तो अब जाके ही इंसान सिफारिश करवाएगा, सुनो, जाके ही सिफारिश करवाएगा। तो अब ये क्या हुआ, सिफारिश का उनने बोल दिया मुशरिक है, तो ये तो मुशरिक हो गए। और ये देखो, इन्ने इस्माइल दहलवी ने तो न्याज नजर न्याज करने को भी मुशरिक बोल डाला, न्याज करने वाले इंसान को भी मुशरिक बोल डाला। इतने बड़े ये लोग पागल होते हैं। अबे तुम लोग सुबह से तुम दावा कर रहे हो, दलील एक दिए नहीं हो, तुमने बात कौन सी खाली कर रहे हो, दलीलें सुनते दे नहीं। दी? तो अपने घर से मुशरिक साबित हो गए। सुनो, तो मतलब तुम्हारे हिसाब से जो मक्का के बुत जो हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बराबर हैं क्या? अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तो तुम उनसे इस्माइल दहलवी से पूछो, उनने बराबर कर दिया है। वो भी यही हाँ, बराबर क्या उनने क्या उसमें क्या? साफ साफ लिखा है, उसमें फिर से पढ़ देता हूँ, सुनो। साफ साफ लिखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में काफिर भी अपने बुतों को अल्लाह के बराबर नहीं जानते थे, बल्कि उसकी मखलूक और उसका बंदा समझते थे, और उनको के मुकाबिल की ताकत साबित नहीं करते थे, मगर यही पुकारना, मन्नतें मानना और नजर व न्याज करना और उनको अपना वकील और सिफारिशी समझना ही उनका कुफ्र व शिर्क था। सुनो, क्या था? कुफ्र व शिर्क था। कुफ्र व शिर्क था, सुन लो, पहले आगे तो सुन लो। कुफ्र व शिर्क था जो, अरे आगे की इबारत सुनो, आगे की। कुफ्र व शिर्क था जो कोई, अरे आगे की सुन लो ना, इबारत तो पूरी सुनो, इबारत पूरी सुनो। पहले किसको सिफारिशी बनाना? हाँ, इन्हें बुतों को, बुतों को। हाँ, अब आगे चलो। हाँ, जो कोई ये मामला करे अगरचे उसको अल्लाह का बंदा व मखलूक ही समझे, तो वो और अबू जहल शिरक में बराबर है। अब इनने क्या लिखा कि मुशरिकीन मक्का भी यही समझते थे कि वो बुत जो है उनको अल्लाह की दी हुई ताकत ही है और वो हमारे सिफारसी हैं, वकील है। अब ऐसा ही अकीदा अगर कोई मुसलमान भी रखे तो वो भी क्या है, मुशरिक है, अबू जहल जैसा। तो अब ये बताओ, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में तुमने सिफारसी का अकीदा रखा, तो ये नबी अलैहिस्सलाम को बुतों को सेम कर दिया ना, और फिर तुम मुशरिक साबित हो गए ना अपनी इस्माइल दहलवी की इबारत से। अरे भाई, मुशरिक तो तुम लोग जिंदगी भर मुशरिक रहोगे। अच्छा ये बताओ, तुम वहां जाके नबी अलैहिस्सलाम को सिफारसी, तुम नबी अलैहिस्सलाम को वहां जाके अपना सिफारसी बनाते हो कि नहीं बनाते हो, ये बताओ। जो तुमने इतनी बड़ी रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की, पहले तौबा करो। तुम्हारे नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का के बुत दोनों बराबर हैं। दहलवी ने लिखा है, मेरी इबारत नहीं है ये इस्माइल दहलवी की इबारत है। उसने ही कहा है कि मुशरिकीन मक्का, हाँ, मैंने ये कहा कि बराबर है। झूठ ना बोला करो, झूठ। अच्छा, मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? उसमें इबारत में कहाँ लिखा हुआ कि रसूलुल्लाह और बुत दोनों बराबर हैं? मैंने क्या तुमने कहा? बराबर किया। मैंने क्या कहा? अरे क्या कहा वो बताओ। मैंने कहा क्या है? बेशरम आदमी। अरे मैंने कहा क्या? ये गाली गलौज पे आ गए तुम। तुमने तौहीन क्यों की रसूलुल्लाह की? अरे मैंने क्या कहा वही तो पूछ रहा हूँ। तौहीन का झूठा इल्जाम लगा के भागना नहीं है, ठीक है? क्या कहा मैंने? तूने बुतों के बराबर क्यों करार दिया? अरे मैंने कहा दिया है वो तो बताओ, क्या कहा मैंने? तू कह रहा है कि इस्माइल दहलवी ये कह रहे हैं कि वो भी मक्का के बुतों को अल्लाह का बंदा ही समझते थे। तो ये तो इबारत में लिखा है। मतलब तो जैसे वो मुर्दा है, उसी तरह रसूलुल्लाह भी मुर्दा है। मैंने ये कहा? अस्तगफिरुल्लाह। तो इनने तौहीन कर दी मेरे ऊपर झूठ बोल के, और मेरे ऊपर झूठ बोल दिया। और ये देखें, पहले आप ये तू तड़ाक पे भी आ गए मेरे से, और तौहीन भी इनने की, और तौहीन करके झूठ मेरे ऊपर लाद दिया। ठीक है, मैंने तो ये कहा ही नहीं, ये अल्फाज तो मैंने बोले ही नहीं। फिर रसूल की तौहीन करो। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने ये कहा ही नहीं कहीं। तौहीन तो तुम कर रहे हो भैया, मेरे ऊपर झूठ बोल के तौहीन तो तुम कर रहे हो। रसूलुल्लाह पे तुमने किस बिना पे इस्माइल दहलवी पे तुमने कुफ्र का फतवा, शिर्क का फतवा लगा दिया? इस्माइल दहलवी ने तुम पे शिर्क का फतवा लगाया है और तौहीन की है नबी अलैहिस्सलाम की। इस्माइल दहलवी जो है वो तो आज के तुम्हारे पीर हैं और मक्का के बुत हैं, इन दोनों को बराबरी कर रहे हैं। और तुम्हारी गुस्ताखी, तुम्हारा दिमाग। इस्माइल दहलवी ने ये कहा कि ऐसा अकीदा कोई भी रखे वो मुशरिक है, अबू जहल जैसा। यहाँ लिखा है कि वलियों के बारे में, वलियों का नाम लिखा है यहाँ पर।
किसका किसका नाम लिखा है यहाँ पर? अरे किसका नाम लिखा है? उनने कहा ऐसा अकीदा अगरचे किसी के भी बारे में रखा जाए और अल्लाह का बंदा ही समझा जाए तो ये शिर्क है। तुम नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा समझते हो कि नहीं? यानी तुम्हारे नजदीक मक्का के बुत जो है मेरे नजदीक नहीं, इस्माइल दहलवी के नजदीक, इस्माइल दहलवी के। इधर उधर की बातें मत करो। तुम अल्लाह का बंदा समझते हो अल्लाह के नबी को? अल्लाह के नबी को अल्लाह का बंदा समझते हो कि नहीं? अल्लाह के नबी अल्लाह के बंदे हैं तो अब इसी अकीदे को रख के तुमने जो सिफारसी बनाया उनको, तो इसी चीज को इस्माइल दहलवी ने मुशरिक कहा है, शिर्क कहा है। इसी को इस्माइल दहलवी ने शिर्क कहा। और अबू जहल जैसा बताया है तुम्हें इस्माइल दहलवी ने। तो अपने इस्माइल दहलवी को मुसलमान साबित करो या अपने आप को मुसलमान साबित करो। तुम मुशरिक हो अगर इस्माइल दहलवी मुसलमान है तो तुम मुशरिक हो, अगर तुम मुसलमान हो तो इस्माइल दहलवी फिर काफिर हो गया, मुशरिक हो गया। अरे भाइयों, अब ये आप लोगों ने बिल्कुल सही सही सुन लिया होगा कि ये जो शख्स हैं ये अपने ही दावे में अपने ही घर से मुशरिक साबित हुए। ये नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगने को शुरू में शिर्क बोल रहे थे, बाद में नबी अलैहिस्सलाम की मदद मांगने को जायज बोलने लगे। अब इनके घर की मैंने इनको इबारत पेश कर दी तो ये क्या हो गए? तो ये मुशरिक हो गए। ठीक है इस्माइल दहलवी के मुताबिक। इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह के फरिश्तों को ही पता नहीं होगा कि कोई बदबख्त आके मेरी इबारत का ये मतलब निकाले। अरे तो तुम निकाल दो, उसमें यही तो है। उन्होंने कहा है कोई अगर अल्लाह का बंदा जान के यही अकीदा रखे तो वो भी अबू जहल जैसा मुशरिक है। तुमने नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा जाना और अपना सिफारसी जाना तो तुम भी मुशरिक हो गए इस्माइल दहलवी की बकौल। अल्लाह के नबी के बंदे तमाम बंदे बराबर हैं। अब इसमें तो लिखा नहीं है कि बराबर और ना बराबर का तो कोई कॉन्सेप्ट लिखा नहीं है। इस्माइल दहलवी ने ये लिखा ही नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम को छोड़ के बकाया तुम किसी और को बंदा समझ लो अल्लाह का और ये अकीदा रखो तो मुशरिक हो गए। मुतलकन कहा है उनने, मुतलकन कहा है भैया, मुतलकन कहा है। मैं सिर मार लूं अब दीवार में, क्या करूं? मतलब इतनी है इस हद तक भी जाके कोई गुमराह हो सकता है। मतलब तुमने साफ साफ इबारत में लिखा हुआ है इस्माइल दहलवी की और तुम जाके उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो मगर कर नहीं पाओगे। जब तुम इस्माइल दहलवी की इबारत बदल सकते हो अपने मौलवी की, तो कुरान शरीफ को तुम कितना ज्यादा चेंज करने की कोशिश करते हो उसका तर्जमा, ये सोचो। फिर फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी कि कोई मेरी इबारत का ये मतलब निकालेगा। क्या मतलब है इसका मतलब क्या है? तौहीन रिसालत ही करोगे, रसूलुल्लाह की तौहीन ही करोगे। मतलब बताओ भैया, इस्माइल दहलवी ने तौहीन की है, मैंने नहीं, मैं मेरी इबारत नहीं, इस्माइल दहलवी की है। अब ये बताओ कि इसमें क्या लिखा है, इबारत में क्या लिखा है, ये बताओ कि वो तो छोड़ो, तुम ये बताओ तमाम बंदे बराबर है, मुतलक है ना, तमाम बंदे बराबर हो। इसमें इस्माइल दहलवी ने किन बंदों की बात की है? बता, तमाम बंदे बराबर हुए ना। अरे इस्माइल दहलवी ने किन बंदों की बात की है? दलील थी क्यों थी? इसमें इस्माइल दहलवी ने बंदों की बात की है। तुम नबी अलैहिस्सलाम को बंदा समझते हो? इस्माइल दहलवी ने यहाँ लिखा ही नहीं है कि अगर कोई कम दर्जे का बंदा हो तो उससे शिर्क हो जाएगा और जो पैगंबर हो तो उनसे शिर्क नहीं होगा। इस्माइल दहलवी ने लिखा ही नहीं है। मसले के लिए सवाल का जवाब दोगे? फंस गया, ठीक है, सुन लो। उलझा है पाओ यार का जुल्फे दराज में, खुद अपने आप जाल में सयाद फंस गया। अपनी ही इबारत में फंस गए जनाब। अच्छा चलो ये बताओ, चलो छोड़ो, अच्छा छोड़ो, चलो, अरे चलो हम तुमको मोहलत देते हैं। अच्छा ये बताओ, ये वलियों के बारे में है ना? छोड़ो नहीं, फिर दूसरी जगह जा रहा है, पहले इसी को हल करो। अच्छा ये बताओ कि जो यहाँ बंदे, सुनो यार, पहले सवाल का जवाब सुबह शाम खाली। ये बताओ कि वो बंदों से कौन से बंदे मुराद है, मुर्दा बंदे, जिंदा बंदे? यहाँ तो तमाम बंदों को कहा है इस्माइल दहलवी ने। तो जिंदा आदमी से भी सिफारिश करवाना शिर्क है इस्माइल दहलवी के नजदीक? अरे इस्माइल दहलवी के नजदीक तुम लोग के दिमाग में कुछ नहीं आने वाला। मुर्दों की बात हो रही है। किसकी? अबे तशबीह उन बंदों को तशबीह किसके साथ दी है? उन बंदों को तशबीह कुफार मक्का के बुतों के साथ दी है। वो बुत मुर्दा थे, जिंदा थे? अरे तो इस्माइल दहलवी ने ये कहा है कि ये अकीदा रख के अगर कोई अल्लाह का बंदा समझ के अगर कोई मदद मांगे, नजरो न्याज करे तो ये मुशरिक है अबू जहल जैसा। ये किन बंदों की बात हो रही है? जो है ना, तुम लोग अल्लाह रसूल को भी नहीं मानते और तुम लोग अपने आला अरे हज़रत भाई को भी इस नहीं इबारत मानते। में बताओ कहाँ लिखा है, कौन से बंदों की बात लिखी है? कुछ तो समझा दो, भागो नहीं। आला हजरत ने फतावा रिजविया में लिखा है,
1% भी अगर पूरा सुबह हो ना पूरा तो किसी को पूरा मारने की कॉमेडी नहीं कह सकते। पूरा कॉमेडी कर रहे हो। यहाँ ये बताओ इस इबारत में क्या लिखा है? इस इबारत में बंदों को जो है, उन बंदों को तशबीह किसके साथ दी गई है? किसके साथ? इबारत पढ़ती पता ही नहीं किसके साथ, तुम बताओगे, मैंने तो बता दिया। बुतों के साथ दी गई ना, बुतों के साथ। हाँ तो क्या किन बंदों से मदद मांगना शिर्क है? बताओ। ये बताओ बुत जिंदा है कि मुर्दा है? अच्छा, ये इस्माइल दहलवी ने बुतों को कहा है। सवाल का जवाब तो मसला हल होगा, यहाँ वहाँ की दाएं बाएं ना चलो किया मैं करो। दो ये बताओ बुत जिंदा है कि मुर्दा है? बुत तो न जिंदा है न मुर्दा है, बुत तो पत्थर है ना। अरे वो उस जमाने में जो मांगते थे वो बुत उनके, तुमने कुछ यार कुछ तो पढ़ लिया करो, वो बुत जो है वो उनके अपने खानदान के, वो अवली अल्लाह ही मतलब खानदान के बड़े लोग हुआ करते दलील थे, जिनको दलील वो लोग दलील 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 इसकी। दलील दूंगा। ना पहले दलील दलील। उसको अल्लाह ठीक ने है। कुरान मजीद में फरमाया, ये जो तुमने बुत बना रखे हैं लात उज़्ज़ा मनात, अल्लाह ने इनकी कोई सनद नाजिल नहीं करी, इसको तुमने अपने कने से गढ़ लिया है। मिशकात शरीफ पढ़ी है? पढ़वा दो भैया, मैंने कुरान पढ़ा है। अब तो जब हम कुरान पे आते हैं तो ये भागते हैं हदीसों पे, जब हदीस पे आते हैं तो भागते हैं तफसीरों पे, हम तफसीर पे आते हैं तो भागते हैं आलिमों पे, जब हम आलिमों पे आते हैं तो ये छुप जाते हैं जाके। अभी बताओ, अल्लाह ने ये फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि ये जो है इनकी अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की है। चलो अरबी पढ़ो। किसकी अरबी पढ़ूं? जो तुम बोल रहे हो अभी अल्लाह ने फरमाया। हाँ, अल्लाह ने फरमाया कि इनकी अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की। अल्लाह ने उर्दू में फरमाया। क्या? अल्लाह ने उर्दू में फरमाया, अरबी पढ़ो। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अरबी में फरमाया तो इस्माइल दहलवी ने फिर उसका उर्दू तर्जमा करके गलत कर दिया, इसका मतलब? तर्जमा करो ना भाई। थानवी ने तर्जमा किया ही क्यों जब मुझे अरबी ही पढ़ना थी? तो तुम्हारा हजरत ने क्यों किया? अरे ये तो सवाल तुमसे है, फिर तर्जमे क्यों किए गए हैं जब अरबी ही सबको पढ़ना है? तो आला हजरत ने क्यों किया? भाई मुझे अरबी समझ में अरे आती है, तुम भाई, कुरान की आयत अकल पहले वहां से नीचे से अकल उठाओ, अपनी अकल गिर गई है तुम्हारी। मुझे अरबी समझ में अकल आती उठा है, लो, तुम अपने अरबी दिमाग में पढ़ो। रखो अकल पहले उठा के। अरे भाई मुझे अरबी ही तुमने पढ़ना तो है जाहिलों तो ये पर किया थानवी ने ना। तर्जमा किसी ने भी क्यों किया फिर? तुम जैसे जाहिलों के लिए किया। अच्छा, तुम जैसे जाहिलों के लिए नहीं किया? नहीं, मुझे अरबी आती है। अच्छा, यानी कि जो देवबंदी तर्जमा पढ़ते हैं जिन्हें अरबी नहीं आती वो जाहिल है। कौन पढ़ता है तर्जमा? हाँ जाहिल पढ़ते हैं, देवबंदी जाहिल तर्जमा पढ़ते हैं, लेकिन जो देवबंदी आलिम नहीं पढ़ते वो तर्जमा। यानी कि थानवी ने इस तर्जमा जाहिलों के लिए किया है। और क्या जाहिलों के लिए किया है? अल्लाह अकबर, इनने अपनी पूरी देवबंदियत को जाहिल करार दे दिया, क्योंकि देवबंदियत में अक्सरियत जाहिल है, क्योंकि उनको अरबी आती ही नहीं है, वो तो तर्जमा ही पढ़ते हैं। तुमको आती है तुम ही पढ़ दो, पढ़ो। अब इनने पूरी देवबंदियत को जाहिल साबित कर दिया, कभी कुछ साबित कर रहे हैं, कभी इस्माइल दहलवी से मुशरिक साबित हो गए, इस्माइल दहलवी को गुस्ताख साबित कर लिया, नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगना जायज है ये साबित कर लिया, और नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगना शिर्क था पहले ये साबित किए हुए थे, और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को चैलेंज कर रहे थे मुनाजरे का। भाई अरबी पढ़ दो, मुझे अरबी आती है, अरबी पढ़ के सुनाते चल, बिस्मिल्लाह। पहले ये बताओ कि ये जो तुमने पूरी देवबंदियत को जाहिल बोला है, सुनेंगे लोग, तुम पे बहुत हंसेंगे भैया। हेलो, भैंस क्या? लोगों को सुनने दो, सुनो पहले, बहुत देर से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीन के आगे भैंस बजा रहा हूँ। अब ये बताओ, अरबी पढ़ के दिखा, अरबी चल। अरे अरबी पढ़ के मैं तभी तो दिखाऊं जब थानवी ने तर्जमा गलत किया हो। अबे भाई तो गलत किया तो तू सही अरबी पढ़, मुझे अरबी आती, तू अरबी पढ़ के सुना भाई। ये क्या अरबी में लिखा है? अल्लाह ने क्या थानवी ने तर्जमा गलत किया है जो मैं अरबी पढ़ूं। अरबी में अल्लाह ने क्या फरमाया ये बताना। अरबी अल्लाह तुम ये कह रहा था ना, अरबी में अल्लाह ने कुछ फरमाया है और थानवी ने तर्जमे में कुछ और लिख दिया। तू ये बता पहले, अरबी पढ़ के बता भाई, अरबी पढ़। अरे तो थानवी ने तो ये कह दो थानवी ने तर्जमा गलत लिख दिया है तभी तो अरबी पढ़ूं। तो अगर ये तुम कह दो थानवी ने तर्जमा गलत लिख दिया है तभी तो अरबी पढ़ूं भैया। हेलो, बोल मैं जाहिल हूँ तो पढ़ दे तर्जमा। यानी कि तर्जमा पढ़ने वाले सब जाहिल है तो लिखने वाला जाहिल समझ के तर्जमा लिख रहा है। पूरी देवबंदी जाहिल साबित हो गई। जितने भी मदरसे में सानिया जमाते सानिया में होते हैं, मदरसे में जमाते सानिया और उला में होते हैं, उनको अरबी नहीं आती कि वो खुद से तर्जमा कर सकें, तो वो मदरसे में पढ़ने वाले सारे के सारे वो जाहिल होते हैं, क्योंकि वो तर्जमा ही पढ़ते हैं कुरान का।
चलो अरबी पढ़ दे भाई, तुझे आती है तू पढ़ दे, तू जाहिल नहीं है तू पढ़ दे। मैं तब अरबी पढ़ूंगा जब तुम ये कहोगे कि अरबी में अल्लाह ने कुछ और फरमाया है और थानवी ने तर्जमे में कुछ और लिख दिया है, तब अरबी पढ़ूंगा। शरीयत पे बहस करते रहता है, शरीयत पे जो है अपनी जहनी आवाज़ नहीं दिखाई जाती है। थानवी ने तर्जमे में चेंज कर दिया है, पहले ये बताओ, थानवी ने चेंज किया है। हेलो, सुन ले, थानवी को छोड़ो, या तो तुम अरबी पढ़ दे या तो बोल मैं जाहिल हूँ तो फिर तर्जमा कर दे। थानवी ने तर्जमे को चेंज कर दिया है, पहले ये बताओ, तभी तो पढ़ूंगा। भाई अरबी पढ़ तू पहले। अरे थानवी ने तर्जमे को चेंज कर दिया है, तभी तो मैं अरबी पढ़ूं। थानवी ने यही करते हो तुम लोग, यही कर नहीं, नहीं, करके सुनो। कौम को गुमराह करते हो, हैं? यही सब करते हो कि अरबी पढ़, ये पढ़, वो पढ़, फिर अपनी अकलें दाखिल करो तुम उसके अंदर, ये सब चीजें करोगे, यही करते हो ना, फिर तुम कौम को गुमराह करते हो। तबलीगी जमात निकाल के आम भोले वाले इंसान के सामने खड़े होके अरबी पढ़ के मतलब अपनी तरफ से दाखिल करके उसको गुमराह करते हो बेचारे को, यही सब करते हो ना। आज फंसे हो बेटा बहुत बुरा तुम। ये देवबंदियों के आलिम हैं, ये सलमान अजहरी साहब को चैलेंज कर रहे थे। इनकी हकीकत देखें क्या है, इनकी हकीकत देखें। ये देवबंदियों के मुनाजिर सलमान अजहरी साहब को चैलेंज कर रहे थे, इनकी हकीकत देखें आप। बोलो, जब चुप हो जाना तब बोलूंगा। हाँ, ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को चैलेंज कर रहे थे। पूरी देवबंदियत को इन्होंने कह दिया कि सब जाहिल हैं जो भी तर्जमा पढ़ते हैं थानवी का, और इस्माइल दहलवी की इबारत से खुद मुशरिक साबित हो गए, और नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगना जायज़ है ये भी इसके कायल हो गए, और पहले कह रहे थे शिर्क है। ये इन देवबंदी की हैसियत है, हकीकत है, और सलमान अजहरी साहब को चैलेंज कर रहे थे। चैलेंज में वो हाल होता ना तुम्हारा, पूरी देवबंदी मातम गधे की तरह, इन्ना अनकरल अस्वातिल अस्वातुल हमीर, चिल्लाओ खाली गधे की तरह। देवबंदी चिल्लाते हैं खाली, हम नहीं चिल्लाते। हाँ वो तो पता चल रहा है, इतने देर से बोल रहा है, बीच में बोलता हूँ मैं, फिर बीच में बोलते हो। वो तो तुम कर रहे थे इतनी देर से। वो क्या बोलूं अब? टॉपिक पे बात करो, टॉपिक पे लफाजी मत करो। हाँ बोलो। हो गया बोल। तुमने जो पहली बात की कि थानवी ने तर्जमा जाहिल वो किया ना भाई, पहली बात ये है कि भाई तर्जमा वो लोग पढ़ते हैं जिनको अरबी नहीं आती। थानवी साहब ने तर्जमा उन लोगों के लिए है जिनको अरबी नहीं आती। अब तू बोल दे मैं भी जाहिल हूँ तो तर्जमा कर दे तू, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैंने जो है उनसे मुनाजरे के लिए नहीं कहा था, जाजिब भाई ने ये कहा था कि भाई ये मेरे भाई हैं, उनसे बात कर लो, उनसे मुनाजरा कर लो। तो मैंने कहा भाई मैं मुनाजरा नहीं करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं इसी तरह डिस्कस कर लो। इस बात पे मैंने कहा था कि भाई क्योंकि अगर मुनाजरा करना है तो भाई किसी बड़े को लाओ, समझे? तुम सलमान साहब, मुफ्ती सलमान साहब को मुनाजरे का चैलेंज नहीं कर रहे थे? जहां तक बात है इस्माइल दहलवी की इबारत की, ठीक है, तो वहां बंदों को तशबीह दी गई है बुतों के साथ। वो बुत मुर्दा थे, यहाँ मुर्दा बंदे मुराद हैं, और जो औलिया अल्लाह है वो मुर्दा है, अपनी कब्रों में भी मुर्दा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा और 1400 साल से अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि अपनी कब्र में जिंदा है। तो जब जिंदा है तो जिंदा आदमी से सिफारिश को कौन नहीं करवाता है? वो तो तुम भी करवाते हो, बोलते हो भाई मेरे लिए दुआ करना, दुआ खैर में याद रखना, कौन नहीं बोलता? हो गया। अब सुनो, अब मेरी बात सुनो। पहली बात ये, तुमने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को चैलेंज किया मुनाजरे का। फिर उसके बाद ये जाजिब भाई ने कहा कि मेरे जो भाई हैं दूसरे उनसे बात कर लो तुम, ठीक है। उन्होंने कहा कि डिस्कशन होगा तो हम डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर आए थे, ठीक है। ये तो इसका जवाब हो गया, हम मुनाजरा नहीं कर रहे, डिस्कशन ही कर रहे थे, मुबाहिसा ही कर रहे थे। सुनो पहले, एक मिनट मेरी बात पूरी सुनो। एक मिनट तुम्हारा जवाब दे तुम। हाँ वो देंगे, अपनी ये बात खत्म होगी फिर वो जवाब देंगे। अब सुनो, अब यहाँ पर जो तुमने कहा कि थानवी ने जो तर्जमा किया है वो उनके लिए किया है जो अरबी नहीं जानते। तुमने कहा कि तुम भी कह दो कि तुम अरबी नहीं जानते, तुम जाहिल हो, और तुमने ये भी कहा था जो तर्जमा पढ़ते हैं वो सब जाहिल हैं, और मैंने देवबंदियों का नाम लिया, तुमने कहा वो सब देवबंदी जाहिल हैं जो तर्जमा पढ़ते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि मैं तभी तो तर्जमा पढ़ूं जब तुम ये कह दो कि थानवी ने गलत तर्जमा किया है, तभी तुम अरबी पढ़ूं। दूसरी बात ये कि जब फिर तुमने कहा इस्माइल दहलवी की इबारत, मैं तुमसे ये कह रहा, तुमने कहा ना कि उनने उन बुतों के बारे में कहा कि जो तुमने कहा कि उनने बुतों का नाम लिया और बुत मुर्दा थे, और इस्माइल दहलवी ने मुर्दों से उनकी जो है तशबीह दी है। पूरी इबारत में अगर तुम ये अल्फाज दिखा दो कि बुत मुर्दा है तो मैं मुर्दा से तशबीह दे रहा हूं, जबकि लात, उज्जा और हुबल ये कौन से मुर्दा बंदे थे कि जिनके बुत बनाए हुए थे? इसकी दलील तुम्हें देनी है, जबकि अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने इनकी कोई दलील ही नाजिल नहीं की, इनको तो गढ़ लिया है तुम लोगों ने, ठीक है। सुनो, इनको गढ़ लिया है तुम लोगों ने, इसकी दलील। हाँ क्या?
ये बुतों को कौन से जिंदा मुर्दा समझते बंदे थे थे? कुफार। ये लात उज़्ज़ा मनात कौन से मुर्दे बंदे थे? बंदे भी नहीं थे तो पत्थर तो मुर्दों से भी ज्यादा मुर्दा चीज है भाई। हाँ तो था, उसने इस्माइल दहलवी ने ये कहा है, ये अल्लाह का बंदा समझ के, सुनो अब, मुर्दा समझ के नहीं, इस्माइल दहलवी ने लिखा अल्लाह का बंदा समझ के अगर कोई सिफारसी बनाए तो वो अबू जहल हाँ तो जैसा ये मुशरिक है। तुमने नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा ही समझा, तो अब सिफारसी तुमने बनाया तो तुम मुशरिक हो गए इस्माइल दहलवी के बकौल। तो इस्माइल दहलवी साहब ने जो ये लिखा है हम्म। कि कुफारे मक्का के बुतों को अल्लाह का बंदा ही समझते थे ना। अच्छा ये बताओ, जो अल्लाह नहीं के ये बताओ औलिया पहले, हैं, तुम बताओ खाली यार, ये बताओ कि वो बंदा ही अल्लाह समझते के औलिया हैं, वो अपनी कब्रों में जिंदा हैं कि नहीं है? थे, मुर्दा हैं। तो यानी कि उनसे मदद मांगने को लिखा है इस्माइल दहलवी ने। ये बताओ कि जो बुतों के बारे में जो लिखा है, वो बुतों को क्या मतलब मानते थे? वो ये बोलते थे ना कि बुतों को मतलब बंदा समझ के, अल्लाह का अरे बंदा समझ के मांगते थे। ये इस्माइल दहलवी ने यही लिखा है। तो कुरान कह रहा है माना अबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा। इसका हाँ। तर्जुमा करो। अरे ये तो इस्माइल दहलवी ने लिख दिया ना। ये तो कुरान कह रहा है भाई, यही तो क्या कुरान कह रहा है क्या माना कह रहा है? अबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, कि हम उनकी इबादत नहीं करते मगर इसीलिए ताकि उनका तकर्रुब हासिल करें, अल्लाह हाँ का तकर्रुब हासिल करें उनके जरिए से। हाँ बिल्कुल। किन के बारे में ये बिल्कुल। क्या आयत, तो जब किन के कुरान बारे कह में, रहा है तो किन के बारे में है बुतों के, नहीं नहीं, किन के बारे में बुतों की वाली आयत है कि ये फिर यहूद और नसारा वाली आयत है? किसके बारे में है? बुतों के बारे में, बुतों बुतों। अच्छा एक मिनट, बुतों के बारे में है ये? हाँ, कंजुल साबित ईमान खोल के देखो, साबित करो। कंजुल ईमान खोल के देखो। अरे कंजुल ईमान में वो नहीं है ना, वो क्या कहते हैं, तफसीर थोड़ी है, वो तो तर्जमा है, तर्जमा है, कंजुल ईमान है, तफसीर थोड़ी है जो उसमें लिखा होगा। इसके अंदर अल्लामा कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में, तफसीर कुर्तबी में, और इब्ने कसीर ने इसी आयत की उसमें तफसीर में लिखा है कि वो जो है यहूद और नसारा और फरिश्ते और जिन मुराद है वहां से, बुत मुराद नहीं। भेजो मेरे पास, भेजो मेरे पास, और मैं तुमको कंजुल ईमान की भेजता हूँ। कंजुल ईमान में कौन सी तफसीर है भैया? मकरो फरे किसी और से दो जो ना पढ़ा लिखा हो, कंजुल अपने ईमान में जैसे कौन सी जाहिलों को तफसीर है दिया। वहां पर? ठीक है, चलो अगर मैं तुम्हारे बकौल मान भी लूं, चलो ये एक अलग बहस है, तुम्हारे बकौल अगर मान भी लूं कि ये, सुन लो, सारी यही है, मैं तुम्हारे पास कंजुल ईमान का वो भेज रहा हूँ, भेजो। तुम मेरे पास जो भी हवाला दिया तफसीर कुतबी, किसी से नाम सुन के आ गए, किताब खोल के देखी नहीं आज तक, और आके तफसीर कुर्तुबी का, अरे हम तफसीर बगैर इब्न दलील कसीर का बात नहीं करते भैया, बगैर दलील बात नहीं करते। चलो पेश करो, भेजो भेजो, मेरे इस पे भेजना अभी। ठीक है, भेजो भेजो, कंजुल ईमान भेजो। हाँ वो भेजो तुम पर तफसीर कुर्तुबी, मैं तुमको भेजता हूँ अभी, कॉल पहले कटने के बाद कंजुल भेज ईमान का पाऊंगा, नाम इसमें वो आ किसने रहा लिया? तुमने लिया था, पहले तुम भेजोगे। है, तो मैं भेजूंगा ना। हाँ कॉल कटने तो फिर भेजता हूँ, इसमें वो है मेरे मोबाइल में, क्या वो है? रिकॉर्डिंग की वजह से बैक नहीं हो रहा है। रिकॉर्डिंग की वजह से बैग नहीं हो रहा है? हाँ, ये कौन सी नई पिक्चर चल रही है? अरे भाई रिकॉर्डिंग की वजह से बैग क्यों नहीं होगा? क्या टेप रिकॉर्डिंग WhatsApp recording। मोबाइल पे रख दिया है क्या? व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग। ठीक व्हाट्सएप है, रिकॉर्डिंग कब होती है भैया? ये देखो झूठ हैं? बोलते पकड़े गए। व्हाट्सएप ने अबे किस जगह पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया है? व्हाट्सएप सेटिंग में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, बात कॉल रिकॉर्डिंग का। तुम लोग की पूरी सुनने की आदत नहीं है, तुम लोग की खाली ठट्टे उड़ाओ कुफार तो मक्का की तरह। जितनी ठीक है, तुमने कही है उतना ही तो बोलूंगा, जितना तुमने कहा है। सुनी, सुनाओ, जितना तुमने बोला उतने की मैंने कह दी। तुमने कहा ना व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग है, तो कहाँ दिया है व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन? मैं बोलने जा रहा, तुम बीच में बोल पड़े भाई। चलो चलो मोबाइल आगे के चलो। अंदर, चलो बताओ, मोबाइल के अच्छा अंदर बताओ यार। स्क्रीन रिकॉर्ड, मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्ड का फीचर होता है, समझे? अच्छा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के फीचर की वजह से बैग नहीं हो सकता, यही कह रहे हो? नहीं हो रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो ऑप्शन होता है कि तुमने अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दी, फिर उसके बाद तुम अगर कोई भी ऐप यूज करो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग इससे तुम्हें नहीं रोकता। तुम बैक भी कर सकते हो, किसी भी ऐप में जा सकते हो, कहीं की भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। ये इनने सामने से इतना बड़ा झूठ बोला है। सुनने वाले जो हो मेरे भाइयों, आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा के फिर उसके बाद बैक करके ऐप में जाके देख सकते हो कि इससे मना नहीं करता, आराम से मुंह फोन बैग हो जाता है। और मैं भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, और मैंने जो अभी ये तकवियतुल ईमान का पेज भेजा है, सुनो, मैं भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। पकड़ा गया चोर, पकड़ा गया। झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया चोर। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सुनो पहले।
सुनो सुनो, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तकवियतुल ईमान का जो मैंने पेज निकाला है जाके टेलीग्राम से, मैंने बैक किया व्हाट्सएप से, टेलीग्राम में गया, तकवियतुल ईमान का पेज निकाला, इनको सेंड कर दिया, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चालू रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं आराम से बैक हो गया, वापस भी आ गया। और ये कह रहे हैं बैक नहीं हो रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से। स्क्रीन रिकॉर्ड जो है ना, स्क्रीन रिकॉर्ड अगर खाली कितना ऐसे झूठ स्क्रीन बोलोगे रिकॉर्डिंग भैया, कसम खाए बैठे हो क्या झूठ बोलने की? जाहिल, सुन ले बात। अरे बीच तुम में हमें बोलते जाहिल बोलते कह दो, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, तुमने तो सब देवबंदियों को भी जाहिल कह दिया। जाहिल तुम लोग हो, ठीक है। तर्जमा तुमसे तर्जमा कर रहे हो, बोल रहा हूँ अरबी पढ़ो, तो अरबी तुमसे नहीं पढ़ी जा रही है। जो अरबी नहीं और आगे पढ़ते वो तुम जाहिल होते हैं, तुमने तो पूरी देवबंदियत को जाहिल बोल दिया, क्या करेंगे? कुरान की अरबी पढ़ो ना तुम पहले। तो अरबी नहीं पढ़ता जो वो जाहिल होता है क्या? ये और क्या भाई? यानी जो भी देवबंदी अरबी नहीं जानते सब जाहिल है। अरबी से जाहिल है। अरे अरबी से जैब भाई जाहिल होना किसको और उठाला यार, किसको उठाला? ये तो सलमान अजहरी साहब के मुनाजरे में चप्पल सीधी करने के भी काबिल नहीं है। इतने बड़े जाहिल को, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात कर रहा था। स्क्रीन रिकॉर्ड अगर व्हाट्सएप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो तो सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड होती है, आवाज नहीं आती है। माइक्रोफोन चालू करो तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, अब वहां पे ऑप्शन आने के बाद अरे कट नहीं हो इनने रहा कहा, है। अब देखो आवाज पे भागे, आवाज पे भागे। अरे भैया तुमने कहा बैग नहीं होता फोन। वही तो बैक नहीं हो रहा है भाई, माइक्रोफोन चालू करने के बाद बैक नहीं हो रहा है। मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, भेज दूंगा रिकॉर्डिंग भी बैग तुझे। नहीं हो रहा है? अच्छा अल्लाह की कसम खाओ, अल्लाह की, झूठ मत बोलना, अल्लाह की कसम खाओ। क्या अल्लाह की कसम बैक नहीं हो रहा है। जब दोस्तों, माइक्रोफोन मैंने ऑन इनकी किया है, इनकी कसम में कितनी हकीकत है। आप लोग क्या करना, आप लोग व्हाट्सएप कॉल लगाना अपने दोस्त के पास, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद आप लोग खुद ही ट्राई करना क्या बैग नहीं होता। यानी कि तुम वहां से हटके किसी ऐप में जाके कुछ कोई दलील इधर से उधर नहीं कर सकते। ये खुद देखना, अगर आप कर सकते हो बैग हो रहा है तो इस शख्स ने झूठी कसम खाई है। लोगों को झांसा दिया, झूठ बोल रहे हो फिर। झूठ बोल, अरे अब तुम्हारा झूठ साबित होगा कि देवबंदी अपनी बात साबित करने के लिए झूठी कसम तक खा सकता है। वहां भी जो है ना तुम्हारा आला हजरत था, ठीक है, उसी किताब से भेजता हूँ मैं तुझे वो भी। अस्तगफिरुल्लाह, ये सब तो तुम्हारे बहतान है, झूठ है। चलो अच्छा, अब ये बताओ, अब ये बताओ, अच्छा तुम कंजुल ईमान की वो इबारत पेश करो। चलो अहमद यार खान नईमी ने, अभी तुमने कहा ना, पहले उसकी वजाहत कर दूं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करने के साथ माइक्रोफोन भी ऑन करो। क्या स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करने के साथ माइक्रोफोन ऑन करोगे जिससे आवाज कैच होती है, फिर देखो बैक होता है कि नहीं होता है। कौन सा माइक्रोफोन ऑन ये करो? पहली बात। अबे स्क्रीन रिकॉर्ड से जाहिल, स्क्रीन रिकॉर्ड से सिर्फ आवाज कैच नहीं होती है, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड होती है। अगर व्हाट्सएप की आवाज कैच करनी है तो माइक्रोफोन ऑन करना पड़ता है। माइक्रोफोन ऑन करना पड़ता है? यही पता बोलते हैं भैया, माइक्रोफोन नहीं बोलते हैं। कैसे जाहिल आदमी हो यार तुम। स्पीकर तो क्या यार, बोलते हैं? माइक्रोफोन करे जा रहे हो इतनी देर से। स्पीकर और अरे स्पीकर तुम्हारे खोल के कौन सा फोन बैक नहीं होता और भाई? स्पीकर भी अगर तुम ऑन कर दो तो फिर कौन सा फोन है बैग नहीं होता, जरा ये भी बता दो। सुनने के लिए आए तो तुम सुनो, खाली बीच में ना बोलो भाई। अच्छा ये जो अरे तो ये भैया मुशरफ झूठ भाई बोलो है, तो ये झूठ सॉफ्टवेयर नहीं बोलो। इंजीनियर है। ये सुनो, साइलेंट हो जाओ। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इन्हें बताओ कि कौन सा जो है फोन बैग नहीं होता है स्पीकर ऑन करने से स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। ओप्पो की K12X है, इसमें मेरा जो है माइक्रोफोन मैंने ऑन किया है, ठीक है। माइक्रोफोन नहीं, स्पीकर। माइक्रोफोन तो ऑन है सबका यहाँ पे, जो बोल रहा है यहाँ पे। भाई मेरे माइक्रोफोन में स्पीकर में फर्क समझो भैया। मेरे में माइक्रोफोन साफ लिख के आ रहा है, ठीक है। अरे उसे स्पीकर बोलते हैं, माइक्रोफोन उसे बोलते हैं जो तुम्हारी आवाज हम तक आ रही है। वो जो ऊपर माइक्रोफोन लिखा के बिना आवाज नहीं आएगी हम तक। और स्पीकर हाँ, बोलते हैं, स्पीकर अलग होता है, माइक्रोफोन अलग होता है भैया। उसको चालू किया है मैंने, तो अब वो बैक नहीं हो रहा है जब से उसको चालू किया है मैंने। हाँ तो भैया, या देखो, दो में से एक चीज हो सकती है, या तो तुम बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो। इसने के लिए तुमको पहले कहा था ना, तो 1 बाय 1 बात करो। तुम लोग आए तो चुप रहो, खामोश रहो खाली। चलो अच्छा, अरे तो भैया झूठ काहे बोल रहे हो? झूठी कसम भी खा रहे हैं ये देखो, और दिल में वो भी अल्लाह की कसम झूठी कौन खाता है यार? बोल दो, अभी बाद में दे देंगे, अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। ये भी हो सकता है एक ऑप्शन। अल्लाह जो है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह उसका फैसला करेगा। ये स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, मैं तुमको भेज दूंगा इंशाल्लाह। ये ऑप्शन आ रहा था। स्क्रीनशॉट लेके कौन बैक करता है यार? स्क्रीनशॉट लेके नहीं, जो ऊपर जिसकी वजह से बैक नहीं हो रहा है
वो उसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, तुमको भेज अच्छा दूंगा। व्हाट्सएप में प्रॉब्लम तुम भेजो, बता। व्हाट्सएप में व्हाट्सएप में भेजो। भेजो, हम देख रहे हैं, भेजो भेजो। वही तो बोल रहा हूँ भाई, वो उसके बाद वो कुछ कोई वो नहीं हो रहा, बैक नहीं हो रहा है। अच्छा व्हाट्सएप व्हाट्सएप कॉल व्हाट्सएप पे भी बैग नहीं हो रही है। अल्लाह हाँ, तो बस भाई स्टॉप भाई, स्टॉप, बस स्टॉप। इतने झूठे आदमी से अब मैं जो अपनी अल्लाह की कसम भी झूठी खा सकता है, उससे वो कुरान और हदीस में कितना झूठ बोलेगा, मैं आगे बात नहीं कर सकता। ये कहने पता चल गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि तुम लोग की यही आदत है, खाली दूसरे पे तोहमत लगाओ, इल्जाम लगाओ, दावे करो, सबूत अब कि तुम्हारे गालियां पास बक रहे हो यार, तो ये देखो गाली हम लोग बक रहे हैं। गाली मैंने कहाँ दी भाई? साला इल्जाम गाली नहीं होती है, इल्जाम लगाना गाली है? अरे मेरे साला गाली भैया, नहीं होती है। अरे मेरे भैया सुनो, देवबंदी साहब सुनो, मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूँ, कौन सा ऐसा फोन है जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप कॉल पे ऑन करने के बाद फिर वो फोन दोबारा बैक नहीं हो सकता? मैं भी माइक्रो स्क्रीन स्पीकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ भाई, मैं भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर माइक्रो रहा हूँ। अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जरा मेरे पास भेजना, फिर अगर तुमने माइक्रो चालू किया है, माइक्रो स्पीकर, अरे तुम मेरे मैं पास अपनी भी रिकॉर्डिंग ये देखो मैं व्हाट्सएप पे देखो मेरे भाइयों स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, यहाँ पर स्पीकर मेरा ऑन है, मैं हैंड फ्री करके ही बात कर रहा हूँ, ये देखो। चलो उसके और बाद मेरे उस पर भेज देना, ठीक है? देखूंगा तुम्हारा वो भी देखूंगा मैं, ये देखो, और मैं भी अपना कैमरा क्यों नहीं हो रहा था बैक। अभी भेज दो अमन भाई, जरा हम देख ले कि आपका हो रहा है बैक। अरे हमारा अभी भी हो रहा है वैसे बैक, इनको दिखाना है, इनके लिए भेज दो। ये देखो, दिखा दो इनको। मेरा जो है ये और सामने जो और कॉलिंग का स्क्रीन ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग जो है वो बराबर चालू भी है। इतना हंसेंगे ना लोग तुम पर, सही बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे अरे यार गूगल मीट पे भी जब स्क्रीन हम रिकॉर्ड करते हैं तो वहां भी कहीं भी बैक करके कहीं भी चले जाओ तो भी वो बैक हो जाता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। पता नहीं कौन सी कहानियां यहाँ पर तुम सुना रहे हो कि मेरा बैग नहीं हो रहा, और झूठी कस्में भी खा रहे हो, अस्तगफिरुल्लाह, सिर्फ अपनी बात बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि अच्छा तूने चलो ठीक है, स्क्रीन शेयर करो अपनी, और फिर वो जो है देख लेंगे हम लोग, ठीक है? करो पूरी स्क्रीन शेयर। रिकॉर्ड हो गई तो उसके बाद भेज दूंगा, देख लेना तुम, ठीक है? अरे चलो स्क्रीन शेयर कर दो भैया। एक काम करो, सुनो, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करो, फिर उसके बाद मुझे वो स्कैन भेजो, फिर उसके बाद भेजने के बाद दोबारा वहीं से स्क्रीन रिकॉर्डिंग फिर शुरू कर देना, ठीक है? स्कैन रिकॉर्डिंग की तुम छोड़ो, उसकी बात बाद में कर लेंगे, इंजीनियर साहब से बाद में कर लेंगे। तुम पहले ये बताओ, तुम कुरान की आयत क्यों नहीं पढ़ रहे हो? आप भागे, ये देखो भागे। मैंने कितना अच्छा तरीका बताया। तुम्हारा रिकॉर्डिंग की वजह से अगर तुम्हारा रिकॉर्डिंग की वजह से ये बैग नहीं हो रहा है, इस रिकॉर्डिंग को उसको कर दो स्टॉप करने के बाद वो मुझे स्कैन निकालो कर दो ईमान का और मुझे सेंड करो, फिर उसके बाद बात जब हम चालू करें फिर रिकॉर्डिंग फिर दोबारा शुरू कर देना। चलो अब ये करो। तुम मुझसे इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे बात करने आए हो? ये देखो फिर भागे, देवबंदी झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया। भागेगा भाई तू, देवबंदी झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया। इतनी जिल्लत आज तक अजगर देवबंदी ही सबसे ज्यादा जलील होता रहा है, हमसे भी और हमारे तमाम मुनाजरीन से, अल्हम्दुलिल्लाह वही जलील होता रहा है। ये दूसरे देवबंदी हैं जो उसके लेवल पे आके जलील हो रहे हैं। आजम है। मैंने कहा ही नहीं मुनाजिर आजम हूँ, मैंने कहा ही नहीं। वो तो तुम दावा कर रहे हो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मुनाजरे के चैलेंज कर रहे हो, तुम मुनाजिर आजम बने हुए हो। और अहले सुन्नत वल जमाअत के अदना से तालिब इल्म अमन अली कादरी के सामने तुम्हारी ये हकीकत हो गई कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की झूठी कस्में खाना पड़ रही है। पता नहीं है बरेलियों के आलिम को, ये बताओ, ये तुमने मुनाफिकत कहाँ से सीखी है? पहले ये बताओ, तुमने अल्लाह की झूठी कसम क्यों खाई? अल्लाह की झूठी कसम खा रहा हूँ मैं। हाँ तो रिकॉर्डिंग स्टॉप करो और बैग जाके मुझे स्कैन भेजो, फिर रिकॉर्डिंग चालू करो। चलो हाँ चलो। हाँ और जो तुमने झूठी कसम खाई है ना, इसको तो अल्हम्दुलिल्लाह सुनने वाले लोग जब अपने फोन का यूज करके और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कॉल पे देखेंगे, वो खुद समझ जाएंगे कि तुम कितने बड़े झूठे हो। किसी भी जो है फोन में आज तक ये फ्यूचर हमने देखा ही नहीं, और ओप्पो में तो ये फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं है कि तुम स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दो और फिर वो बैग ना हो। और तुम्हारा फोन तुम बता रहे हो ओप्पो का है। रिकॉर्डिंग का मसला फोन बैग करने से बिल्कुल अलग है। तुम लोग सिर्फ दावे करते हो, ठीक है? दूसरे को झूठा करना, दूसरे को ये कहना, तुम लोग का यही काम है। मैं बोल रहा हूँ ना, रिकॉर्डिंग किया हूँ, भेज दूंगा, देख लेना उसके ऊपर। कंजुल ईमान का वो भेजो, रिकॉर्डिंग स्टॉप करके बैग जाओ, कंजुल ईमान का वो भेजो। इसके भेज रहा हूँ भाई, भेज रहा हूँ।
जाजिब भाई जी सुन रहा हूँ मैं। सुन रहे हो ना? अभी इन्होंने अभी जी इन्होंने जी। कहा इन्होंने कहा था वो सुना था ना कि दलील अगर तुमने वो भेज दिया तो मैं अपनी शिकस्त लिख दूंगा, याद है वो? कौन सी दलील? कौन सी दलील भाई? हैं? कौन सी दलील पे कहा था कौन मैंने सी? ये? ले आओ यार। साहब अमन भाई ने कहा था कि अगर आप गैब पे मदद मांगने की कोशिश साबित कर दोगे तो वो शिकस्त लिख देंगे, ये उन्होंने कहा था। सब दलीलों पे वो भी नहीं कहा भेज था रहा मैंने ये कहा था कि बिल फर्ज अगर मान लो वहां अगर बुत्ता भी अल्फाज है तो भी तुम्हारा मुद्दा साबित नहीं होता, ये कहा था मैंने। हूँ, वो भी लेकिन भेज रहा फिर हूँ, भी तुम भेजने कंजुल ईमान से दिखाओ कि वहां पर बुत कहाँ पर ही लिखा हुआ है। वो भेजूंगा मैं, और लिख के देना कि शिकस्त, ठीक है? अरे तो मैंने इस पे शिकस्त का ऐलान ही कब किया जो शिकस्त लिख के दूं? तुमने अभी कहा ना भाई कि अगर तुमने वो साबित कर दिया हमारी किताबों से, इल्म के बारे में भी कहा था ना तुमने। हाँ तो वो तो उस पे कहा था ना कि गैब में मदद मांगना शिर्क है, ये साबित कर दिया तो उसी शिकस्त बात लिख मैं भी के। कर रहा हूँ, लो, उसी की बात कर रहा हूँ उसको। अभी कह रहे थे, अभी ये दलील दे रहे थे तो कह रहे थे शिकस्त लिख के दे दूंगा, तो अब जब मैंने इनकी पकड़ की मैंने इस दलील पे नहीं कहा और जैसे भाई ने भी यही कहा कि इस दलील पे नहीं कहा गया, तो अब कह रहे हैं कि ना मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। इतने बड़े झूठे होते हैं ये लोग, जिसका ठीक नहीं। सुनो सुनो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑफ करके घुमा फिरा के बात ना करनी, तो तुम लोग की आदत है भाई। मेरा समझ लो तुम्हारे ऊपर इतना टाइम बर्बाद हो गया है, तुमने इतने झूठ बोले, इतना पूरी देवबंदियत को तुम्हारे जलील ऊपर किया है, बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद किया है तुमने मेरा। और एक दलील को कभी कुछ कह रहे हो कभी कुछ कह रहे हो। इतने देर में तो पता नहीं कितने कितने काम हुए होते, तुम जैसे फजूल आदमी से बैठ के अपना वक्त जाया कर रहा हूँ मैं, ठीक फजूल है? तो हो फजूल सुनने वालों को पता चल रहा है कि फजूल सकता कौन है। फजूल तो तुम हो, क्योंकि तुम कभी कुछ कह रहे हो, कभी जाहिल बोल रहे हो, कभी नबी अलैहि सलाम से मदद मांगना जायज है ये बोल रहे हो, और शुरू में शिरक बोल रहे थे, फिर इस्माइल दहलवी की इबारत से तुम खुद मुशरिक हो गए। तुम क्या कर रहे थे? तुम कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुतों के साथ तशबीह दे रहे हो, कभी नबी सल्लल्लाहु वो अलैहि वसल्म इस्माइल की दहलवी की हयात। इबारत पढ़ रहा था यार, मैं इबारत पढ़ रहा था, इस्माइल दहलवी ने ऐसा सब कुछ कहा है, मैंने नहीं कहा। अस्तगफिरुल्लाह, मुझ पे इल्जाम डाल के अपने आप को बचाने की कोशिश मत करो इस्माइल दहलवी को। अब मजे की इस्माइल बात क्या दहलवी है, ने इस्माइल दहलवी ने बुतों के साथ तशबीह दी, तशबीह तुमने दी, ये अरे तुम्हारे जहन में इस्माइल सब चीजें। दहलवी ने कहा है कि वो मुशरिकीन मक्का बुतों को यही अकीदा रख के पुकारने से मुशरिक हुए, लिहाजा कोई अगर अल्लाह का बंदा समझ के भी पुकारे तो वो भी अबू जहल जैसा मुशरिक है। तो मैंने तशबीह दी है कि इस्माइल दहलवी ने दी है? कैसे तुम घामलों लोग के जैसी जहन में बातें आता कर रहे हो। चलो स्कैन भेजो, ये सब तुम लोग कंजुल ईमान का स्कैन भेजो, के ज्यादा बातें मत करो, कंजुल ईमान का स्कैन। रिकॉर्डिंग ऑफ है तो भी चुप रहो अभी थोड़ा, ठीक है? हाँ चलो भेजो, चुप हुई हो, मैं अपने भाइयों से बात करता हूँ, तब तक म्यूट कर लो। नहीं कुछ भाई अरे हम ये आपस में बताइए, बात जब कर रहे हैं इनके ना। आलिमों का ये हाल है तो जाहिलों का क्या हाल होगा? जाजिब ठीक भाई है? ये इनके मुनाजिर हैं देवबंदियों के, ये ध्यान रखना। चलेगा, अपने आपस में बात कर लेना तुम लोग। इनके अरे अपने इतनी आलिमों का देर ये में तो हाल है स्कैन तो निकल जाता है, जाहिलों का मैंने क्या देखो हाल होगा भाई? मैंने तुम्हें कितनी जल्दी उसका स्कैन निकाल के दे दिया था। अरे भाई मत, किताब है थोड़ी अभी यहाँ पे कंजुल ईमान। अच्छा यहाँ है भी नहीं, तुम्हारे पास है भी नहीं, ये लो। अल्लाह अकबर। अच्छा मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इन्हें ये तक नहीं पता होगा, जहां तक मैं बिल्कुल मोहर के साथ नहीं कह रहा, जहां तक मुझे लग रहा है इन्हें आयत तक का नहीं पता होगा कि ये आयत कुरान शरीफ में कितने नंबर की है। हाय सूरह जुमर की आयत नंबर 3 है, निकाल रहा हूँ मैं, समझा? और सूरह आज तक जुमर की आयत तुझसे तो आज नंबर तक 3 है। है। सूरह जुमर की आयत नंबर 3 है। और क्या? पूरी आयत में ये जो तुमने बातें की है सूरह जुमर की, ये लिखा हुआ है। चलो अच्छा दिखाओ दिखाओ। वाह भाई वाह, शाबाश। तुम्हारे आला हजरत की जो कंजुल ईमानी ऐसी लिखी हुई है कि बंदा उसमें खोया रहता है। इसलिए इसमें टाइम लग रहा है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, कंजुल ईमान तो वो तर्जमा है जिसको पढ़ने के बाद देवबंदियों के ईमान ताज़ा हो जाते हैं, सुन्नियों की तो बात छोड़ो। कितना ताजा होता है उसको देख लेना, तुम पढ़ के देख लेना। तुमसे बोला था मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह हमें सबको मालूम है कि जहाँ थानवी ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए नाजेबा तर्जमा किया, वहाँ आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितना प्यारा तर्जमा किया, उसकी शान मुबारक के लायक सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है।
اب تو ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو تم بتا رہے ہو، یہاں تک ذلیل ہوتے آئے ہو، آگے بھی کہاں تک ذلیل ہوتے جاؤ گے؟ مطلب تم دعوے کر لیتے ہو اور دلیلیں پھر تمہارے پاس رہتی بھی نہیں ہیں۔ فیضان بھائی اتنا دیر کیوں لگ رہا ہے؟ دوستو یہ اس لیے پتہ دیر کیوں لگ رہی ہے، یا تو انہوں نے ترجمہ دیکھ لیا ہے، اس کے اندر ان کا جو مدعا ہے وہ لکھا ہی نہیں ہے۔ جی جی انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کنز الایمان کا ترجمہ دیکھ لیا ہے، اس کے اندر ان کا مدعا لکھا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل ہی ترجمے پہ جھوٹ بول دیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو وہ اعتراض نہ ہو، چلو ٹھیک ہے، پہلے ان سے دیکھ ہی لیں، میں بعد میں ہی دکھاؤں گا کہ اس ترجمے میں کیا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں یہ مناظرہ کرنے والے تھے مفتی سلمان ازہری صاحب سے، ان کو چیلنج کر رہے تھے، اور اس پہ کنز الایمان پر ہی انہوں نے جھوٹ بول دیا ہے اور اسی کا دفاع نہیں کر پا رہے۔ یہ مناظرے میں ایسے دلیلیں پیش کریں گے کہ میں ابھی جا رہا ہوں مدرسہ دیوبند سے، پہلے وہ دلیل لے کر کے آؤں، پھر اس کے بعد میں دکھاؤں گا کہ ابھی میرے پاس یہ دلیل نہیں ہے، میں پھر بعد میں لا کے دکھاؤں گا۔ وہ مناظر کے پاس تو ساری چیزیں موجود ہونا چاہیے۔ اور کل بھی ان کو ٹائم دیا گیا تھا کہ آج 12 بجے بات ہوگی، تو پھر کل سے ان کو اب تک بات کرنے کا جو وقت ملا تھا، تو ان کو اپنی ساری باتوں پہ تحقیق کر لینی چاہیے۔ الحمدللہ ہم جو بھی بات بولتے ہیں اس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، تبھی ہم بولتے ہیں، بغیر دلیل نہیں بولتے۔ اب یہ جناب دکھائیں گے کہ ترجمے میں کنز الایمان میں یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں، بت والے۔ چلو دوستو، کیونکہ یہ ٹائم بہت لگا دیں گے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے، میں ہی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی فرمائیے۔ جی؟ میں پہلے اس کا اسکرین شاٹ جو ہے اس کا گروپ میں سینڈ کر دیتا ہوں، آپ لوگ بھی پڑھتے جائیں گے تو اور بہتر ہوگا۔ یہ دیکھیں، اور ان کے گھر کا بھی دکھائیں گے، مولوی تقی عثمانی کا۔ یہ دیکھیں، یہ مولوی تقی عثمانی کا ہے اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ دیکھو اوپر لکھا ہے تقی عثمانی ترجمہ، اسی آیت کا، آیت نمبر 3 کا۔ اوپر دیکھو سورہ نمبر 39 یعنی کہ سورہ زمر آیت نمبر 3، یہاں لکھا ہے کنز الایمان: ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے، اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور ولی بنا لیے۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ بت بنا لیے، ٹھیک ہے، لفظ بت نہیں ہے یہاں پر۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے اس کے سوا اور ولی بنا لیے، سوا اور ولی بنا لیے۔ کہتے ہیں ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں، اللہ ان پر فیصلہ کر دے گا اس بات کا کہ جس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ راہ نہیں دکھاتا، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہے۔ اور یہی بات تقی عثمانی نے بھی اپنی اس میں ترجمے میں لکھی ہے۔ تو دوستو کہ یہ ثابت ہوا کہ کنز الایمان میں بت کا الفاظ نہیں ہے، ہوا نا ثابت ہے؟ ہلو، ہاں ترجمے میں بت کے الفاظ ہے؟ دیکھو، کنز الایمان دیکھو، دکھاؤ۔ دیکھو سامنے پہنچی۔ ہاں دکھاؤ۔ ارے بھائی ہائی لائٹ بھی کر دینا چاہیے نا۔ کون سی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں؟ یہ پڑھو۔ ہاں یہ پڑھو، دیکھیں یہاں بھی بھائی آپ لکھا نے ہوا ہے تو پکڑے گئے۔ یہ لکھا ہے دیکھو یہاں بھی، یہ دیکھو پکڑے گئے۔ اللہ کو پوجنے اس کے بندے ہو کر، ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے، اور وہ ارے جنہوں نے، سن لو پہلے، اور وہ جنہوں نے، جو تم نے بھیجا نا اسی کو پڑھ رہا ہوں، اور وہ جنہوں نے
अरे मैं ऊपर से पढ़ रहा हूँ ना। नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हाँ कहाँ है यहाँ पर बुत कहाँ लिखा है यहाँ पर? तर्जमा करो पहले, हाँ ये तर्जुमा है नहीं। तर्जमा करो, उर्दू तो पढ़ो। हाँ यहाँ पर ये है, हम तो उन्हीं सिर्फ इतनी बात के लिए पूजते हैं, ठीक है। यहाँ हाँ, बुत कहाँ है? सुनो सुनो हम सुनो तो- सुनो सुनो, पीछे आओ पीछे, सुन लो हाँ। भैया सुन लो, ये देखो यहाँ लिखा है, देखें है, और हाँ। वो जिन्होंने उसके सिवा और वली बना लिए। ये देखो दोस्तों यहाँ साफ साफ फंस लिखा गया? है उसके सिवा वली बना लिए। यहाँ बुत का जिक्र कहाँ है? हैं? यहाँ तो आला हजरत ने जो तुमने इबारत वो स्कैन भेजा है उसके अंदर भी लिखा है आला हजरत ने और उन्होंने उसके सिवा वली बना लिए। बुत कहाँ है यहाँ पर? क्या है वो? क्या हम उन्हें लिखा है? क्या उन्हें लिखा है? इन लोगों ने उसके सिवा अल्लाह के सिवा वली बना लिए। सही कहते हैं भाई कि पढ़ा लिखा सही नहीं, आती ये आती। बताओ यहाँ पर बुत कहाँ लिखा है? हेलो बुत बताओ कहाँ लिखा है? हम तो उन्हें दिख रहा है, हाँ उन्हें किन्हें? तो 6 नंबर लिखा हुआ है, हाँ तो उस नीचे आके 6 नंबर देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? पढ़ो। सुनाओ पढ़ के। तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? भेजा तो हूँ, देखो न तुम पढ़ के सुनाओगे तुम। सब लोग पढ़ो भाई। जाजिब भाई तुम पढ़ के सुनाओ। मैंने 6 नंबर सूरह नीचे जुमर की आयत नंबर 3 का बता दिया, अब तुम पढ़ोगे। जाजिब भाई भाई आपने जो भेजा है ना स्क्रीन शॉट, उसका क्वालिटी बहुत गिर गया है, कुछ समझ में बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है। पढ़ने लायक तो होगा। अरे इसका मार्क कर दो, मार्क एक काम करो उस जगह मार्क कर दो, कहाँ की जगह। 6 नंबर तो यहाँ कोई आयत ही नहीं दिख रही है जो तुमने भेजा है, यहाँ तो बस आयत जो है वो 4 नंबर तक है। तो 6 नंबर कहाँ से पढ़ूं मैं बताओ? और 6 नंबर इसमें कहाँ लिखा है? जाजिब भाई पढ़ो। जाजिब भाई, जाजिब भाई, हेलो। हाँ हाँ पढ़वाओ, क्या है वहाँ? हाँ पढ़ो, मैंने मार्क किया उसको पढ़ो, क्या लिखा है? एक मिनट। अच्छा ये तुमने ये यानी बुतों को, ठीक है, ये कौन सी आयत हाँ। का तर्जमा है? मा नअबुदुहुम का, मा कौन सी? नअबुदुहुम जो हम, एक मिनट, ये कौन सी आयत का तर्जमा है? मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि कहाँ है? ज़ुल्फ़ा का। कहाँ है यहाँ पर? हैं? अबे भाई मा तो नअबुदुहुम में तुमने तो सूरह ज़मीर जुमर है। की आयत नंबर 3 का तर्जमा बताया था, वो पढ़ो, किधर और मत जाओ, उस पे तो हमारी बात ही नहीं हो रही है। 3 का इसी बताओ, आयत पे तो 3 बात का। नहीं। नहीं 3 का हाँ। बताओ। मैंने कौन सी आयत पेश की थी? आपने सूरह जुमर की आयत नंबर 3 पेश की थी, वहां पर लिखा है कि अल्लाह के सिवा वली बना लिए। बुत कहाँ पर ही है? अरे मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, उसका तर्जमा है ये, हम उन्हें, तो जमीर का इन्हें। मर्जा वास्ते किया। तो यहाँ पर बुतों को। नहीं वहां ये नहीं लिखा है जो तुम ये उन्हें हाँ। कर रहे हो, ये जो तुमने यहाँ ये मार्क करके भेजा है ना, ये उस आयत के तर्जमे का नहीं है। ये देखो उसको नीचे कहीं से भी तुम कुछ भी कर दे रहे हो, ये तो आला हजरत के तर्जमे का है ही नहीं। वो 6 नंबर कहाँ लिखा हुआ है? वो तर्जमे के पास ही ये देखो, उन्हें क्या तर्जमा आगे है। 6 नंबर। एक मिनट, ये तर्जमा है 6 नंबर। तर्जमा पढ़ो, तर्जमा। जमीर का मर्जा वास्ते किया। ये तर्जमे के नीचे जो हाशी, सुनो तर्जमे के नीचे जो नंबरिंग हुई हुई है, और वो नंबरिंग भी इस आयत की नहीं है, वो किसी और चीज की नंबरिंग है, और वहां लफ्ज बुत लिखा हुआ है, वहां से कह रहे हैं बुत साबित हो गया। इनका दावा था कि आला हजरत ने तर्जमे में बुत लिखा है, तर्जमे में कहाँ है बुत बताओ? तूने कहा था तफसीर है ही नहीं, तो मैंने कहा था भाई वजाहत की हुई है नीचे। आला रिकॉर्डिंग सुन लेना फिर आला से। हजरत ने पूरे कुरान में तफसीर नहीं लिखी, तर्जमा किया है। मैंने कहा था ना कि तो ये वजाहत अलग की बात है हुई कि है। उनका तर्जमा तफसीर नुमा होता है, उनके तर्जमे में बताओ, इधर उधर से मत बताओ। ये बुतों को किसने ये लिखा? तो वही बात हो गई, हमने तुमसे तर्जमे से मांगा और तुम कहीं और से निकाल के दे रहे हो। तर्जमे से बताओ, नहीं तो तौबा करो, न तर्जमा नहीं है ये। आए?
तर्जमा पढ़ो, ये तर्जमा है जो तुम पढ़ रहे हो। हम ज़मीर का मर्जा क्या है? आला हजरत ने लिखा है उन्होंने वली बनाए थे, ठीक है, वलियों के वो जिनको वली बनाए हुए थे उनकी तरफ इसको इशारा है। और यहाँ पे तो जो इन्होंने आला हजरत ने वली लिखा है कि बुत लिखा है, ये बताओ पहले। किसने? आला हजरत ने वही वाद किया कि यहाँ बाबा बुतों को नहीं, मुराद है। वली लिखा है कि बुत लिखा है, ये बताओ पहले। आला हजरत ने तो उन्हें लिखा है, उन्हें का उन्हें मतलब नहीं, क्या है? वली आला हजरत ने वहां लफ्ज वली लिखा है कि उन्होंने अल्लाह के सिवा वली बना लिए। बुत कहाँ लिखा है यहाँ पर? नाबुदुहुम लिखा है। हम कैसे पागल इंसान को उठा लाए यार तुम लोग, कितना इन्हें मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। आला हजरत पे भी झूठ बोल के नहीं मान रहे, आला हजरत पे साफ साफ झूठ बोला है इनने। लोग जब तर्जमा खोल के आयत नंबर 3 का देखेंगे सूरह जुमर की, तो वो कहेंगे कि इतना बड़ा खतरनाक ये देवबंदी है, झूठ बोल के उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा। 1 मिनट के लिए चुप हो जा। जाजिब भाई सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, जी बोलिए बोलिए। मैंने कौन सी आयत पेश की थी? मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना पेश की थी ना। एक सेकंड में देखता सूरह हूँ। जुमर की आयत नंबर 3 नहीं बताई थी इनने? आपने सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 3 बताई थी। आपने सूरह जुमर आयत नंबर 3 का हवाला बोला था। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना, ये जुमर की आयत नंबर 3 के अंदर ही तो है ये। कौन सी? मा नअबुदुहुम इल्ला हाँ, तो ये लियुक़र्रिबूना इलल्लाह। आला हजरत ने उन्हें वली वली लिखा है कि वो जो जिनको अपने वली बनाए हुए थे, बुत नहीं, बुत का लफ्ज नहीं है वहां पर। ये लिखा है, वली कहाँ लिखा है? आपने वली तो ही लिखा है, देखो पढ़ो उसको, आंखें खोलो, मैं रेड लाइन कर देता हूँ। सुनो, तुम कुछ नहीं करोगे, मैं ही रेड लाइन कर देता हूँ। हम तो उन्हें, अरे वो तो पीछे वाली आयत की, वो तो पीछे वाली की है। ये मा नहीं नअबुदुहुम है, की बात अरे कर। पीछे नहीं है, यही तीसरी नंबर की आयत है, यही है, पीछे की हाँ, नहीं हाँ। है। हाँ तो फिर तीसरे हाँ। नंबर की आयत है, तो फिर पीछे पीछे क्यों कर रहे हैं? अब एक काम कर, पूरी आयत का तर्जुमा कर, चल उर्दू पढ़ के। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। पूरी नहीं, अभी तुम जो पकड़े गए हो इसका क्या होगा, झूठ बोलते हुए। मा लोग नअबुदुहुम बहुत पढ़ी थी। हंसेंगे भैया। ओ ये देखो दोस्तों, यहाँ जो मैंने तर्जमा हुआ है, और 6 के बाद नीचे उन्होंने वाजे किया है कि उन्हें से कौन लोग मुराद है। तो वहाँ किसने बुतों लिखा वाजे हुआ किया, है, बुतों। किसने वाजे किया, अरे तुम्हारे बरेलवी आलिम ने वाजे किया क्या वाजे किया है? तो ना ज़मीर का नहीं मर्जा वाजे किया। ये नहीं लिखा हुआ, ये जो आयत मार की के तफसीर में ये लिखा ही नहीं है। जो तुमने वो भेजा है ना, वो नंबरिंग है दूसरी जगह की, वो इस आयत की बात नहीं हो रही है। आला हजरत ने इस आयत में साफ साफ वली लिखा है, बुत नहीं लिखा। तुमने कहा कि बुत थे, तुमने बोला झूठ, देवबंदी गया भाग, ये देखो भागा भाग गया देवबंदी। अब आप लोग देख सकते हैं, जो मैंने मार्क करके भेजा है वहां पर क्या लिखा हुआ है? वली लिखा है भाई, मैंने पढ़ा है। वली वली वली। अब जितने भी लोग इस रिकॉर्डिंग को सुने अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप खुद से क्या करें, वो खुद से कंजुल ईमान का तर्जमा जाके चेक करें, सूरह जुमर की आयत नंबर 3 का, वहां पर वली ही लिखा है। और ये देखो कैसे झूठ बोल के भागा। तो जाजिब भाई, आपको पता चला कि देवबंदी कितने मक्कार होते हैं। ये कभी जिंदगी में अपना मौक़िफ़ साबित नहीं कर सकते। कितनी जगह घूमे, अपने घर से मुशरिक भी साबित हुए, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मदद मांगना जायज़ भी इन्होंने मान लिया। तो जैसा कि भाइयों आपने इस रिकॉर्डिंग को सुना, तो इसमें आपने देख ही लिया होगा कि ये देवबंदी कितना बड़ा मक्कार और कितना बड़ा कज़्ज़ाब है, कितना इसने झूठ से काम लिया और यहाँ से वहाँ छलांगे लगाता रहा। ये देवबंदियों का आलिम है, ये मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को चैलेंज कर रहा था, और एक अहले सुन्नत के अदना से शख्स के सामने इसकी कैसी हालत थी ये तो आपने सुन ही लिया होगा। दोस्तों, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जो तर्जमा कंजुल ईमान किया है, उसमें जो ये बात थी कि इन लोगों ने अल्लाह के अलावा और वली बनाए। तो अब कोई शख्स ये कहे कि अब किसी को वली मान लेना शिरक है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस आयत करीमा में है कि इन लोगों ने अल्लाह के अलावा और अपने वली बनाए। तो सूरह काफिरून में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े फरमाया कि ए महबूब, तुम इनसे फरमा दो कि मैं जिसकी इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते, और तुम जिनकी इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करता। तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। तो पता चला कि ये लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा जिनको भी वली समझा था, तो ये लोग अल्लाह से हट के
अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, उनको इबादत के लायक समझते थे और उनकी इबादत किया करते थे। और जब कभी मुसीबतों में फंस जाते थे तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारते थे, लेकिन ये उनको भी इबादत के लायक समझ के इबादतें किया करते थे। तो अब वहाबी से सिर्फ इतना कहना है कि वहाबी, तू अगर अपने बाप को इबादत के लायक समझ के अगर पुकारेगा तो चाहे ज़ाहिर में पुकार या गैब में पुकार, वो शिरक ही होगा। और अगर इबादत के लायक समझ के नहीं पुकारेगा, मसलन तू इबादत के लायक उसको नहीं समझ रहा है, तू सिर्फ यही समझ के पुकार रहा है कि वो अल्लाह का बंदा है और मदद करेगा, तो ये शिरक नहीं होगा। चाहे गैब में पुकार चाहे ज़ाहिर में पुकार। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयत पे है। तो सूरह काफिरून से ये साबित होता है कि ये लोग उनको इबादत के लायक समझते थे और उनकी इबादत करते थे और अल्लाह की इबादत नहीं करते थे। ये सूरह काफिरून में लिखा हुआ है। तो पता चला सिर्फ लफ्ज़ गैब में, यानी कि गैब में पुकारने की वजह से, चाहे अकीदा उनका कैसा भी हो, लेकिन लफ्ज़ गैब यानी कि गैब में पुकारने की वजह से वो मुशरिक हुए थे। पूरे कुरान शरीफ में एक आयत करीमा भी ऐसी नहीं है। लिहाजा ये देवबंदी और वहाबड़े सारे के सारे कज़्ज़ाब और मक्कार हैं और मुसलमानों पे झूठे फतवे लगाते हैं, कुरान शरीफ में अपनी अक्लें इस्तेमाल करते रहते हैं। लिहाजा इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वह अपने प्यारे हबीब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले सदक़े तुफ़ैल हमें इन फितनों से महफूज अता फ़रमाए। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। ये दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा